में फिर अपनी सरजमी का परचम।
लहरा दो सरकशी का परचम लहरा दो गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम।
सरजमी का परचम। सरजमी का परचम।
कश में फिर अपनी सरजमी का परचम।
लहरा दो सरकशी का परचम लहरा दो गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम
सरजमी का परचम।
Good evening and welcome to the grand finale of Jinharsh Timken Ador Cup 2023. Wipsa Warriors versus DPX Dynamites. So we saw some scintillating matches. This is the fifth day, and we have seen some wonderful matches being played. And in the finale, these two teams who have been really sensational, have been really performing very well, have come and they have defeated two very good teams in the semi-final. TVX Tufanis, last year's finalist. In fact, the defending champions were knocked out. They were so good, and Rajiv especially and his mates, they were fantastic, but they were defeated. And GPX Dynamites have got their claim in the finals. Wipsa Warriors, they were defending champions, in fact the runner-ups of the last year, and they would like to go one notch higher this year and claim the title which eluded them last year. So last year's champions are out, last year's runner-ups are still there, but DPX Dynamites have played really well. Some of their players have played fantastically, especially this man on your screen, the opening bowler Jigar, has been brilliant with the ball in his hand, and also he comes out to open the innings. There is also Neil, who has played well in one or two matches, but this man has been more consistent than Neil Jigar because he has performed quietly. Neil may be the man who has one or two matches he was brilliant, and he was the reason where he got two matches where they were absolutely had no chance. Neil was the one who played brilliantly, batted and bowled brilliantly, and got them those unlikely victories. But here in this match, the most important player for me, I feel, would be Jigar, because Jigar's first 2 overs are going to be crucial in the first phase. Also, the batting when he comes to open the innings, so he was a very valuable player for them. Very reliable, very economic when it comes to bowling, and very dependable, and the ones who gets ones or twos. So let's start. The umpires are ready, the players ready, and we are going to start exactly at 6:46. As it is, we are already past it.
and it's slightly late behind schedule. It's 6:50 now. Let's get started. Oh, that's beautifully good bowling. This is what is special about this man, the man on your screen. Yes, Neeraj. In fact, sorry, Jigar, he is the one who is the opening bowler. Also, he is the opening batter of the team. And Heman and Priyesh. Heman gets it down the leg side. We'll wait for the umpire's signal. The ball is racing for the first fantastic KD Corporation boundary. So that's the first, and take my word, it won't be the last. So the score is 4-4 without loss, but a beautifully played leg glance by Heyman, just showing the direction to the ball and just gliding it down. The man at the other end, he is impressive, and don't discount Priyesh, because Priyesh can hit it very hard. He goes for a big shot. This is the finals, playing under Knights, so they need to perform well, and they have taken a lot of hard work. They have played some tough matches and they have come to the finals, and it's a very, very toughly fought tournament where we saw some fantastic performance from almost all teams, and very, very closely competitive. Oh, that is off there. What is good use of pace over there, but that's good field placement. They have got those angles covered, so they would love to have a slip over there, but the ball is racing through this quick outfield. That's very good to see. The score is 5 now, 5 without loss. The man on your screen, he is very important. Look at him, very strongly built, and he has a very strong batting instinct also. He is not the one who likes to be kept quiet. And Priyesh, if he is successful, he is going to be really, really dangerous, because not many people have a close eye on him, but Priyesh can be dangerous. He has not performed that well in the tournament, but this might be the match where he comes good. Heyman has been very smart. That's again crammed him up straight to the fielder. Priyesh is taking some risky runs. The score at the end of over number 1 is 7 without loss. Wipsa Warriors off to a good start. So Wipsa Warriors off to a good start, but Neil Shah generally used to bowl the overs below. Now he's going to bowl in the first 6 overs. That's nicely bowled. Well, that's good approach by Heyman. He is trying to attack Neil. He's going to be dangerous. Neil is going to be important bowler for them. He bowls up and down bowler. He bowls straight and quick, and once he gets his rhythm right, he is very difficult to get off. Just like Vatsal, he has been a match winner for their Neil. So Neil Shah bowling that second over. It's going to be an interesting encounter, especially between these two young guns, Neil Shah versus Vatsal Doshi. That's the encounter you should have a close eye on, how they are going to 1-to-1, if you say, the matchups. That's using the pace of the bowler. He has done it quite well. All 3 shots have gone behind the stumps. 1 leg glance and 2 delicate late cuts. In fact, edges flying through the slips. That was close.
This is a good combination, experience on one side, but I would love to see Priyesh play some good shots. And Priyesh has run so well. He is 2 of 2. Heman is 7. Always good to see a good finale. We need to have a score around 160. Oh, that's the first hit. A major one. The ball will race away for a fabulously hit cover drive. It was a gift after Uttarayan, and he accepted it with both hands. What a crisp cover drive. The ball was bad. It was a full toss. But you need to dispatch those also. What a good shot that was. Fantastic hit. A great shot by Heyman. He gets his second boundary. That's a KD Corporation fantastic boundary. While first one was a delicate touch down the leg side, this one was a full toss dispatched beautifully into the covers. Neil will make a strong comeback, take my word. So this is what I was talking about. Fantastic ball, just cramping him up. Correction in line, correction in length, and gets it absolutely right. Such interesting encounter this is now. Against a young guy who is performing very well, who can bat so well. And Heyman, he may not be in his 20s, but he's a very, very competitive cricketer. He's played so well for his 11 right now. Well, that's not a good shot, but he's making an attempt to go for runs. That's what is more important. So the score at the end of 2 overs is 13 without loss. Thank you so much all of these sponsors who have been part of this. So back live here, the score is 13, in fact 14 now. And Priyesh comes on strike. Priyesh Shah. And 13, in fact the score is. Jigar is an important bowler for them. But this is a good matchup. One bowler who bowls well and another batsman who wants to hit big. He's got just little strike. But that's beautifully bowled, crammed him. And look at the instinct. A big appeal. He gets in. Score is 14 now. He bowled so well, the ball was right on stumps, crammed him, but Priyesh is showing some good intent. He wants to go big, he wants to get some runs. This is going to be a very good contest. There are some good players, some good experienced players in the team. We have Jigar over here, Heyman is there, and young guns of Neil and Vatsal Doshi. They are going to be straight locking horns against each other. Let's see whether they will win. Oh, that's down the leg side. That's a wide. Yes, bowled absolutely so very well all throughout the tournament. Very, very well disciplined bowler, this man. And he bowls the ball in the right areas. That's his speciality. And very rarely do we find him bowling some wide balls. That was a close one because that went slid down the leg side. That's the reason. Score is 15 now. 15 without loss. 2.2 overs. Oh, he has cleaned him up. That's the reason I say Jigar can be dangerous. Jigar gets a wicket. That's an excellent super wicket powered by Wipsa Drive Industries, Mr. Pratik Shah and Rahul Shah. That's the first wicket. An excellent wicket powered by Wipsa Drive Industries. So this tournament, whoever has been associated with the tournament, thank you so much for all of you guys. Especially the food sponsors, DYZ, V Bearings, India Solutions, Rakhi, Nishan Shah. The food was fabulous all throughout those days. Thank you so much, sir. Also, the ground partners, Vikas Enterprises, Mr. Vikas Gupta, thank you so much for giving an experience of almost playing in a stadium. And YouTube live sponsors, Mr. Master and Sons, Bhavi Impex, Mr. Chitresh Udani, Mrs. NK, Master and Sons, NK Trading, Mrs. Master and Sons, Sri Sham Impex, Mr. Ajay Agarwal. Media partners, Access Technologies, QLH, Mr. Sanjay Shah, Kunjal Shah and Harish Mehta. Naukar Enterprises, Mr. Prakash Vilakhya, Mr. Sagar Vilakhya are our apparel sponsors, whatever pads and all,
those kids, all the dresses. In fact, the dresses, apparel, all the clothes which you have, sponsored by Mr. Prakash Bilakia and Sagar Bilakia, Navkar Enterprises. The kit sponsored by ball and kit sponsored, all those pads and bats and helmets and all are sponsored by Mr. Rohit Zatakia, Chandramouli Enterprises, CME. Wicket and prize sponsors, Excel Industries, Mr. Pratik Shah and Rahul Shah. 4 and 6 sponsors, KD Corporation, Mr. Karan Vora. Thank you so much, all of you guys, and thank you for all your continued support. Also, all the team owners, Wipsa Warriors, Doshi Brothers, KK Smashers, KK Engineering, HE Warriors, Hasti Engineering, TVX Tufani, Henix Impex, HMS Hard Hitters, HMS Bearings, and DPX Dynamites, Dia International. Also, Jinharsh, so 16 for what the score is. Beautifully done. Again, this is good fielding. They have got that those angles covered. They have got the fine leg and the third man really fine, and because of which they have been able to stop a few boundaries from going over. So the score is 18 for 1, 2.4 overs. Sahil Parekh comes on strike. He is their main man. See the way he handles the balls, plays with all delicate touch. He is the star of the tournament for me. This tournament would be remembered for Sahil's brilliance. More than anyone, it was Watson who was brilliant, super brilliant. Actually, he is the young man who has made all the good noises. Also Neil Shah. But one man who has stood aside more than anyone has been Sahil Parekh. He has been simply outstanding. This is his tournament this year. And very quiet, humble young man. Priyesh is trying to just settle in. He's taken a single, and that's what they both have been discussing. Do not give a wicket away now. They want to play a bigger innings or longer innings. The score at the end of over number 3 is 20 without loss. Oh, that's nicely bowled. This is really interesting now. This is where the match is going to be decided. This would be Neil's second over, and first over he was just getting warmed up, and take my word, this boy can bowl some quick balls. So how Priyesh handles him and how Sahil Parekh plays him, that's going to be crucial. Priyesh might be wanting to go very hard against him. He is in fact playing smartly. Does not want to give it away. That's what Sahil must have told him, to not give your wicket away, because he can play some long shots afterwards, and he can be the one. Now that's beautifully bowled. This is how you bowl in your first few overs. And Wipsa Warriors also won't complain, because they would like to have a steady start, because they need a score which is somewhere around 150 and 160. They do not want to get skittled down in the finale, so they would like to have a cushion of runs which would make them feel safe. But this man on your screen versus Neil. If Neil picks Sahil Parekh early, that would be a big dent. But if Sahil gives them a nice platform, then the Superboy can come. Vatsal Doshi can come and hit a few boundaries and sixes. For that to happen, Sahil needs to stay there. It's as easy as that. Neil picks Sahil, Wipsa Warriors would be in a lot of trouble. DPX Dynamites might win the final as well. So this spell is going to be crucial. But this is why this boy is special. What a shot this is by this man. Fantastic. This will go all the way for a KD Corporation super boundary.
This is fabulous. This is super stuff from Sahil. All delicate touch, all finesse, all artistic wrist work. That's like a batsman with a paintbrush in his hand. He's an artist when it comes to this tournament. He has been the one who has done everything right. So, kudos to this man. He is continuing the same in the finale as well. So Sahil Parekh gets 6 of just 3 balls. Neil would ball. Yeah, that's beautifully handled. They got a boundary. He just gives respect to the good ball. The previous ball also wasn't bad. He just came into the line of the ball, just flicked it down the leg side to get a fantastic boundary. So the score is 25 now. 3.5 balls and 25 runs. Wipsa Warriors are off to a brilliant start. In spite of losing that wicket, they got a few boundaries and the run rate is quite alright. So that's a full toss. Well, that's beautifully done. Just a delicate touch, not trying to hit the ball hard. Getting another boundary of Neil. So 2 boundaries in this over. This man is up and running. The score is 29 for 1. The reliable Sahil playing again a good innings. A KD Corporation fantastic hit boundary. And चौथा पांचवा रहेगा. सरकशी का परचम लहरा दो गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम. So Jigar continues with his third over, and this over is going to be crucial because this would be his last over in the spell. But Priyesh has not taken chances, but I strongly feel Priyesh might go for his shots. But that's what Sahil must have told him. Do not give your wicket away. The score is 29 for 1. Jigar, I think this boy will go big now. Priyesh might go big. Yes, he wanted to, but he got flummoxed. He wanted to go for a big shot, dance down the ground, then was beaten, then was trying to play a defensive shot. Then he missed it out altogether and was just there to save his wicket. So everything happened over there, an intent to hit, then to try to defend, then got beaten, then saving his wicket. Oh, everything happening there. You see, he is charging ahead just to play it defensively. And so that he covers a few steps down the ground and completes his single. Very different kind of batting this is. Smart batting though, Priyesh. Is trying and coming down at the wicket as if he wants to hit a sixer, then plays it with soft hands and takes a run. And while he is coming down the wicket, 30% of the ground he covers with those few initial steps. Plays with the soft hand, takes a single. 30-1, but this man on your screen, he is scoring at a strike rate of 200. And that too all delicate, nice shots. He hasn't used his strength at all. 2 boundaries which he has got, all with delicate touches, Sahil Parekh. So not using a lot of muscle, but using a lot of finesse is this man, Sahil Parekh of the Wipsa Warriors. And this is how he plays. See, using the soft hands, turning the ball. The score moves on to 31. They are going along at a fair rate. This is good power play for them. And if you get around 40 runs in this tournament, it's good. The score is 31 for 1. Priyesh, he has still to get his first boundary. Might be the next ball. He goes down the ground. This would be his first boundary, a KD Corporation boundary. Yes, he's got his boundary. Almost something fitted in his software. I could sense that he's going for his boundary. He gets a boundary, and that too he did not want to go it full hard, complete big shot. He just wants to play a big innings. So he's just trying to control his shots. Priyesh, he does not want to go mad and hit every ball. He wants to have a close look at the ball. And as soon as he gets a boundary, he wants to get a few more. He gets greedy.
The score at the end of 5 overs is 35 for the loss of 1 wicket. Jinharsh Timken Cup 2023. Back live we are, and Bhavin Mehta, he's a good off spinner, almost like an international player his action, and bowls very nicely. Ramesh Pawar was one such bowler who used to stop and start and ball with that action. Also we had Ravichandran Ashwin bowling that way. So many bowlers. Saklin Mushtaq was the one who started with this kind of bowling with stop start style. Very nice action also. There was so many off spinners. It bowls it with that kind of action. See, this is going to be interesting now. Off break bowler Bhavin Mehta was bowled really well all throughout the tournament. Very rarely he has been taken for runs. He is their important player. If Bhavin Mehta bowls all those 4 overs well, he'll pick a lot of wickets. Look at Priyesh. He's so smart. He's playing with soft hands and taking his singles. He's got a boundary in his short innings of 13 balls. This is the last over of the power play. Strong chance that Sahil might try and pick a couple of boundaries in this over. Try and hit at least one. Might be happy if he gets two. He's playing it smartly though. He's not trying to be greedy. And this man is running ragged. He's running superbly. Priyesh. Sahil moves on 14. 13 in fact. Priyesh is on 11. That's beautifully bowled by an off spinner. Nice flight. This is only thing that did not happen is a bit of a turn and an edge of the bat or something. But take my word, this boy Priyesh will go big on this ball. He's not going to take a backward step. He'll go big. He wanted to go big. That's well bowled. Almost trying. Now he will get impatient now. 2 consecutive dot deliveries. Might go for a big one. Last ball. That's beautifully played. That is scooped away. The ball is racing towards the final. That will go for another boundary. Nicely played scoop shot. He's just used the finesse. The score moves on to 42. Boundary of the last ball of the power play. 42 for 1 at the end of 6 overs. That's a very good power play for Wipsa Warriors. Come back after a break.
So the score is 42 for 1, exactly 7 runs per over. And projected score they say 140, but they should be happy with minimum of 150, 155. If they get 160, that would be a very good score. But 155 is the par score in this tournament, where teams have won by hitting those most times than not. But if anything below 140 would be once or twice only they have been able to defend. That's nicely played using the soft hands. Both these batsmen have made a very good mindset. They do not want to give it away. They do not want to give the wicket away. They want to play a proper innings, so that when the hitters, when they come down the lineup, just like Vatsal or others, they would have sufficient overs and a good background to go and hit the runs. So they need a good start. They are providing them with that. And especially this man, look at him playing with soft hands. Oh, this is dangerous. Oh, that's right decision. That's a right decision by the umpire. But that's a very, very big wicket. That's a very wrong call. Especially if it was a seamer, that's fine. But it was a spinner, so the ball was just close. Look at one-handed pickup with the gloves. One stump to aim at, two stumps to aim at an angle of 45 degrees. He gets the big man. It's not a good thing to lose your best player off a run out. I think that would be the crucial turning point of this match. And Priyesh was thinking of singles. If you take a single, you should be running at the danger end, not calling a partner at the danger end. And good work by the wicket keeper. Sinirav doing the job for his team, picking the man they wanted. Sahil through run out, the best batsman of the team, getting out through run out. It's not something which you should be proud of. So everything was right till 6.1, and things have gone completely bad after that. Let's see what this man's approach would be. Vipul Sangvi, he is the new man in. He would be on strike now. The score is 43 for 2. 43 for 2. स्कोर पट्टी अटक गया लगता है, उसने अपडेट नहीं किया, अटक गया, ये दूसरा विकेट गया ना, अच्छा वही कर रहा है कुछ. So the score is 43 for 2 now, and of the second ball they have lost the big man, the best player of the tournament, getting out via run out. That's not something which you should be proud of in the finals. But the fielding team, DPX Dynamites, would take it with both hands. And Ali Asgar gets a run out in his first over of the big man. But this is what they must have discussed: take singles and rotate your strike, but not against a player who is your best player, and not risking that. The ball was hardly 2 meters away from the stumps, and we made a valiant effort, but what just fell short. I don't know what Priyesh is going to do. Will that wicket be playing on his mind? Will he go for his singles, or will he go bang bang now? He should be continuing to take singles now, because in that process he has lost his man, but this time he should call well. That things might just be different, and Priyesh might go for his big shots. He's looking tired now. Instead of going for the singles, why not go for big shots, Priyesh? Make use of your strong muscles. You cannot be hitting the ball by just rooting your feet. You need to move your feet. If your feet aren't moving, the scoreboard won't move. It's 44 for 2 now. Last 2 balls of the 7th over. That's a wide. That's going to help. 45 for 2. Might just go for a big one now. 45 for 2. Instead he plays it defensively. Ali Asgar, he was expensive in the first match, but after that every match he has bowled well. Ek ball aur hai na. The score at the end of over number 7 is 45. In fact, umpires are just waiting for it. Yes, it's an over. The score at the end of over number 7 is 45 runs for the loss of 2 wickets.
45 for 2. Beautifully bowled Yorker. He'll now pile on pressure because they have lost Sahil. Sahil was their run machine and everything was fluent and nice and smooth till Sahil was there. Now things would be different. DPX Dynamites will take over of this match. They'll have complete control over it. They'll bowl dot balls after dot balls, and that's going to create pressure. Only man who can save them from this one is going to be Vatsal Doshi now. He is their most experienced player. Vipul Sangvi has a fantastic record in this tournament, has played almost every tournament, has played really well, and he is one of the most promising players, the dependable players of this tournament. Very senior. No, that is beautiful bowling. What a good ball that was. Almost an international stuff by Bhavin Mehta. Fabulously bowled off break. DPX Dynamites. Will they be the champions this year, or will Wipsa Warriors do one better this time? Runner-ups of last year. Oh, that's a full toss taken gleefully. In fact, I beg your pardon. I've been saying they were the runner-ups. I'm really sorry. In fact, it was HE who were the runner-ups last year. I am extremely sorry. Nobody reminded me. I just got off my mind. Wipsa Warriors were not the ones. In fact, it was TVX Tufani who were the champions and HE were the runner-ups. So both the champions and the runner-ups are out of the tournament, and we'll have a new champion this year. I beg I beg your pardon for that, all the wrong mistake which I put. So sorry for it. So last year's runner-up and last year's champion were defeated in the semi-finals, and both these two teams have claimed their places. So HE was defeated, and also the champion Steve. Oh, that's a good shot. That's what I was talking. He might go big, and he gets a 6. He should have done this from the beginning, and that's what I say. Yes, it's a very strong boy, Priyesh, and he can hit the ball big. That's a KD super 6, and it was just squatted the fly against a very good. He's a very good bowler, and fabulous 6 that was. 52 for 2, and that ball has been lost. That ball is out. They have to put a report of that ball in the nearest police station because the ball has just been lost, and with Priyesh playing like this, there might be a few more lost balls now. 52 for 2. That was hammered actually with the cross bat down the ground. A sweep down the ground. I've seen it for very rarely do we see that kind of shot. And 6 runs. Important runs. And Priyesh should use that long handle now. Forget about the run out of Sahil. He has to score for Sahil also. Every time there have been centuries. Rohit Sharma, whenever he gets a double century, twice it has happened that Rohit Sharma has got Virat Kohli run out, and he gets a double century after that. And that's what he says. Virat Kohli says he had to score my century even, or I scored Virat's century. That's what his claims were also. So that has happened. He gets mixed up with Virat. Virat loses the wicket, but he scores a century for his mate also. So Priyesh has to do like that. He doesn't forget about having a double century, forget about having a century, but team try and make at least a half century here so that he makes up for them. And let me take this time opportunity to thank all the team owners as well. Wipsa Warriors, Vipul, Mr. Viral Bhai, Viral Doshi, Pradeep Doshi and Sanjay Doshi. That is for Wipsa. Also KK Smashers, Mr. Lalit Khetan and Ankit Khetan, they were a fantastic team. HE Warriors, Mr. Nirav Shah, unfortunately they lost, but Nirav was simply outstanding all throughout the tournament. Mr. Kaushik and Mr. Henning Gilani, TVX Tufani, Henix Impex. That's he has already claimed one man, so does not want to go for it. HMS Hard Hitters, Mr. Mayank, Mr. Hardik and Mr. Jinay. Also CME, in fact DPX Dynamites, the team which are playing Mr. Parin and Mr. Deepak's team, they are playing to claim to be the champions of Jinharsh Timken Ador Cup 2023. Thank you so much Jinharsh, our title sponsors, a one-stop solution for all your industrial needs. So let's come back live now after a small delay. We start again. The score is 52 without, in fact 52 for the loss of 2 wickets. Ali Asgar,
That's beautiful, and that's I want to see him coming on strike. This man, yes, Priyesh versus Ali Asgar. This is going to be interesting. Ali Asgar has bowled really well in the last two matches, and he might be having a chance to pick Priyesh. Priyesh, who has just hit a 6, would be in a good mood to go for a big one. Let's see whether he gets for maximum on this in this over. He might go for a big one. But that's not his game. He's not able to play the balls outside the off stump, and he's not able to understand those. Instead, see the ball and go smack for it. He's trying to play square of the wicket. Better try and play down the ground and smash it down the ground. He plays with soft hands, turns it around, gets a single, 54 for 2. Ali Asgar has bowled well, and he's the one who has kept control over the scoring. Couple of balls remaining in this over. Score is 54. They have controlled the scoring rate now. They need to find a few boundaries. Yeah, what's a very good shot into the covers just for a single. $55 for 2. The run rate of just over 6.23 to be precise. They would like to take it to 7 runs per over, which was there after the end of power play. Last 2.5 overs, they have just got 13 runs. This man has to go big. $56 for 2 at the end of over number 9. A run rate of just about 6.22. Projected score 124, not so good. For 2, the next 6 balls. पैसे की बात नहीं. So 56 for 2, the last 6 balls of the first half of the power play. तो आखिर की ये 6 गेंदें होंगे पहले 10 ओवर की, और जयेश आएंगे गेंदबाजी. बहुत ही ज़बरदस्त गेंदबाजी, इनकी गेंदबाजी से मैं प्रभावित हुआ हूँ. बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, लेकिन जैसे ही कुछ अच्छा बोलो उनके बाद उन्हें बहुत बड़ा वाइड डाल दिया. ऐसे मैचेस में जब आप खेलते हो शाम के वक्त, तो थोड़ी जब ठंडी हो, तो आपको वार्म्ड अप अपने शरीर को गर्म रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपके जो बड़े मसल्स है वो ठीक से काम नहीं करेंगे जब तक कि बॉडी आपकी वार्म्ड अप नहीं होती है. और ये स्मैश किया है, ये शॉट मारा नहीं है, इसे तोड़ दिया है. एक होता है रन को जोड़ना, एक होता है रन को आगे बढ़ाना, एक होता है गेंद को तोड़ देना. ये तोड़ फोड़ वाला शॉट था. ये रन जोड़ा नहीं था, ये तोड़ कर रन बनाए थे. और ये बल्लेबाज है, मैं यही कह रहा हूँ कि अपने बस केडी कॉर्पोरेशन ने चौका, जिसमें आप नज़ाकत या क्रिकेटिंग शॉट, इसमें भरपूर ताकत. ये इनका खेल है, ये इनका नैसर्गिक खेल है. अगर इनके साथ साहिल पारेख भी हो जाते, सोने पे सुहागा हो जाता. ये दोनों अगर साथ में खेलते और थोड़ी देर के लिए पागल हो जाते, तो इस टीम में मज़ा आ जाता. इस मैच में, इस प्रतियोगिता में, इस अंतिम जो मैच है उसमें मज़ा आ जाता. लेकिन आज सूझबूझ भरी बल्लेबाजी की है. आज वो बड़े हिट्स के बाद सिंगल्स, बहुत ज़्यादा सिंगल्स निकाले इस प्लेयर ने आज, प्रियेश ने. तो उनके घर वाले अगर उनकी फिटनेस के बारे में चिंता कर रहे हैं, तो आज बहुत रन्स वो सिंगल्स में उन्होंने भागे हैं. और पिछले शुरुआती के मैचेस में वो बड़े शॉट्स लगाने के प्रयास में आउट हो गए थे. तो इस बार मन बना के आए कि लंबी पारी खेलेंगे और अपनी टीम की नैया पार करेंगे. तो थोड़ी सी उसमें अड़चन तो आई थी. बहुत बड़ा जो उनको एक धक्का पहुंचा था, एक बहुत बड़ा जो चोट पहुंची थी, वो थी साहिल के स्वरूप, जो उनके सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है. वो रनआउट के स्वरूप में आउट हो गए. तो सबसे अच्छा बल्लेबाज जब रनआउट हो जाता है, तो उससे बड़ी आपके लिए दुर्घटना नहीं हो सकती. लेकिन उससे भी वो उभर कर शायद इस मैच में वापसी करेंगे. तो प्रियेश को रन बनाने पड़ेंगे अब साहिल के भी.
ये बेहतरीन गेंदबाजी। ये जो प्लेयर्स हैं, जयेश है, उसके बाद जो सीनियर खेले राजीव टपारिया थे, राजीव जिन्होंने बल्लेबाजी देखी, क्या बेहतर इन्होंने टूर्नामेंट बाकियों के लिए सबक रखा है कि एज या उम्र इट्स जस्ट अ नंबर। और बेहतरीन कैच, एक्सेल, सुपर विकेट विपुल संघवी का, एक्सेल विकेट। पावर प्ले में से प्रतीक्षा राहुल शाह। देखिए एक बार फिर एक बार फ्लाइट किया था, आमंत्रित किया था ड्राइव के लिए, सीधा ड्राइव, सीधा कवर्स की दिशा में, और बेहतरीन कैच वहां पे। शायद धर्मवीर है यहाँ पे, उंगलियों पे जाके सीधे लग रहे। बहुत जबरदस्त फील्डर है, अंगूठा उनका थोड़ा सा मुसीबत में। ड्रिंक्स ले रहे हैं। लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम। वी आर बैक। अब ड्रिंक्स ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। विकेट के बाद हमने ड्रिंक्स ब्रेक ले लिया था, 10 ओवर के बाद बनस्पत लिया जाता है, लेकिन इस बार वो ड्रिंक्स ब्रेक ले लिया था बिकॉज 10वें ओवर के हम करीब थे। स्ट्राइक पर है फिर एक बार प्रियेश। प्रियेश शायद अपना वही खेल जारी रखेंगे या प्रियेश बड़े हिट्स के लिए जाएंगे, वो हमें देखना है। जो 10 ओवर की समाप्ति बाद स्कोर है 63, 63, 6.3 की जो रन गति है। चलिए देखते हैं अगले 10 ओवर्स में क्या होता है। जैसे क्रिकेट फुटबॉल में कहा जाता है, फुटबॉल इज अ गेम ऑफ 2 हाफ्स।
अगर आप 2020 को ब्रेक डाउन करना चाहते हैं तो अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके से लोग देखते हैं। पहले 6 ओवर्स, फिर बाद में देखेंगे 6 से 10 के बीच के ओवर्स, कई लोग देखते हैं 10 से 15 के बीच के ओवर्स, फिर कहा जाता है कि अगले 1-2 ओवर्स, फिर बाद में आखिर के 4 ओवर्स। तो कई टुकड़ों में बांटा जाता है 2020 मैच को, उसको अलग अलग ब्रेक में किया जाता है। लेकिन अगर आप उसको 3 भाग करने हैं तो पहला तो 1 से 6 पावर प्ले, फिर आप देखेंगे तो 7वें ओवर से 15वें ओवर तक, और फिर बाद में 16 ओवर से 20 ओवर तक का खेल। तो 3 पार्ट्स में अगर उसको डिवाइड करना है तो आप वैसे कर सकते हो। लेकिन अगर आपको दूसरे नजरिए से देखना है तो आधे गेंदें हो चुकी है 63। तो हर बार अगर आपने देखा होगा 90% ऐसे होता है कि जितने रन आप पहले 10 ओवर में करते हो उसमें 15 से 20 रन आप जोड़ के अगले 10 ओवर में करने की आपकी इच्छा होती है। तो यहाँ से अगर आप 75 to 80 रन का अगर आप जोड़ लगा दे तो 150 के आसपास स्कोर पहुंच जाता है। मतलब उनको अगर और 87 रन बनाने यहाँ से, तब उन्हें जाकर 150 का आंकड़ा मिलेगा। माफ कीजिए 87 रन जोड़ने पड़ेंगे। तो अगर इसमें आप 80 रन जोड़ दो तो 184 हो जाएगा, 183 हो जाएगा, 143 हो जाए, माफ कीजिए 143 हो जाएगा। तो वो टोटल उतना चैलेंजिंग 150 के आसपास उन्हें पहुंचने की प्रयास करना चाहिए। वत्सल दोषी उनके पास है, उनकी टीम के धाकड़ बल्लेबाज, एक जबरदस्त ऑलराउंडर। इस सभी प्रतियोगिता के सबसे बड़े स्टार्स में वत्सल आ चुके हैं, 2 पे 2 बना दिए उन्होंने। और स्ट्राइक पे होंगे अब प्रियेश क्या करेंगे? प्रियेश अगले 1-2 ओवर सिंगल्स निकालने का प्रयास करेंगे और फिर बड़े हिट्स के लिए जाएंगे, या सीधा नहीं, एक बार वो साहिल को रन आउट कर चुके हैं, वत्सल को रन आउट नहीं करना चाहेंगे। वत्सल भी एक मैच में रन आउट हो चुके थे, उन्होंने अपनी विकेट फ्री गिफ्ट दे दी थी और ऐसी वो पॉइंट स्क्वायर लेग की दिशा में रन मारकर भागने का प्रयास करने गए थे और उन्हें रन आउट कर दिया गया था। तो वो नहीं चाहेंगे वो अपनी गलती दोहराना। ये उनका गेम नहीं है। उन्होंने कम से कम 15 बार तो गेंद को कट करने का प्रयास किया होगा, लेकिन कोई कनेक्शन नहीं हो पाया। वो सीधे बल्ले से खेले, कवर्स में खेले, सामने खेले, क्योंकि कई बार आपके कट शॉट्स, हॉरिजॉन्टल शॉट्स अगर आपके अच्छे नहीं है, आप सीधा खेलो, आपका जो एडवांटेज है वो खेलो, बॉल की लाइन में आओ, कवर्स में खेलो, सामने खेलो, या बिल्कुल इस तरह कनेक्शन तो हो पाएगा। आप बल्ले का पूरा 100% उसमें दे देते हो। जब कट शॉट खेलते हो तो आप में अगर वो टाइमिंग नहीं है, अगर आप उसको टेक्निक नहीं है, तो आपका कनेक्शन के लिए आप पूरा बैट नहीं देते हो। वो ट्राई कर रहे हैं अभी भी, एक भी उन्होंने अभी तक ठीक से कट शॉट खेला नहीं है। वो उसके लिए प्रॉपर प्रैक्टिस की जरूरत होती है। आपकी बैकफुट का पोजीशन ठीक होना होता है, आपको गेंद के ऊपर उसी वक्त पे आना जरूरी होता है। ये देखिए हल किया, ये साहिल की तरह उन्होंने शुरुआत किया, हल किया। तो ये बहुत अच्छे प्लेयर है, फील्डर। 66 फॉर 3 प्रियेश। अगर मैं प्रियेश की टीम में तो मैं प्रियेश से कहूंगा तुम अपना नेचुरल गेम खेलो, आप बड़े हिट्स के लिए जाओ, आप गेंद को जोर से हिट करो, बस गेंद हवा में मत खेलो, आप जोर से हिट करो गेंद, आपको बहुत चौके मिलेंगे इस ग्राउंड पे। ये सूर्य कुमार यादव की तरह खेलना चाहते थे, गेंद शायद बल्ले के से लग कर गया था। अच्छा प्रयास वहां पर विकेट कीपर का। 11 ओवर की समाप्ति में स्कोर है 66 फॉर 3, 6 रन प्रति ओवर। सो बैक लाइव वी आर, स्कोर है 66 फॉर 3। स्ट्राइक पे हैं वत्सल दोषी और सामने बहुत ही एक्सपीरियंस जयेश। बहुत बड़ी अपील, लेकिन काफी आगे थे, फ्रंट फुट पे थे खिलाड़ी। बेहतरीन गेंदबाजी, फ्लाइट दे रहे हैं, ललचा रहे हैं वत्सल को। वत्सल के लिए दुधारी तलवार हो जाएगी, बिकॉज उनका नैसर्गिक खेल है अटैकिंग करना, और उन्हें अभी थोड़ा सा रुक के खेलना पड़ेगा। ये वाइड होगी। यही तो जिंदगी आपकी जद्दोजहद होती है कि आपको सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। आपकी विकेट भी आपको संभालनी है, यहाँ पर आपको रन्स भी बनाने, आपके परिवार को भी संभालना है, आपको अपनी निजी लाइफ को भी एंजॉय करना है, कोई बहुत सारी चीज़ें होती है। फिलहाल वो यंग लड़का ज़मीन पे है, ही इज़ डाउन बट इज़ नॉट आउट। बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है ये, इस ग्लैमर बॉय है। इस प्रतियोगिता की क्या परफॉर्म किया है, क्या मैच्योरिटी से खेला है, पिछले साल के मुकाबले इस साल क्या मैच्योरिटी दिखाई इस प्लेयर ने। मैच विनिंग
उन्होंने बल्लेबाजी और गेंदबाजी की है, और अगर आप उनको ऐसी गेंदबाजी करेंगे तो आपको पूरे दिन भर वो चौके छक्के लगाएंगे। बेहतरीन केडी कॉर्पोरेशन चौका। अच्छी गेंदबाजी करने के बाद एक खराब गेंद, और इस खराब गेंद को सही नसीहत दी इस चौके के साथ। केडी कॉर्पोरेशन जबरदस्त पहला चौका वत्सल की बैट से, और ये गेम होना चाहिए, उनको खराब गेंदें मिलेंगी। वत्सल का विकेट पे रहना बहुत जरूरी। तो एक गेंद पे वो बीट हो गए थे, दूसरे गेंद पे उन्होंने चौका जड़ दिया। 71 फॉर 3। अब थोड़ा सा रन गति में बदलाव आएगा। वत्सल दोषी 71 पे 3। ओ क्या शॉट है ये, दिस इज सुपर। ओ माय गॉड, कैच छूट गया, सपना टूट गया, शायद मैच भी छूट जाएगा अगर आप वत्सल को ड्रॉप करते रहेंगे तो। अच्छा, सब सारी चीजें उन्होंने अच्छी की थी, लेकिन एंड वक्त पर हाथ से गेंद छिटक गई। लेकिन ये शायद निर्णायक हो सकता है। 73 फॉर 3। सीधा खिलाड़ी के पास, धर्म है वहां पर। बेहतरीन गेंद, उतना ही जबरदस्त ड्राइव, क्या खूबसूरत टेक्निकल शॉट था ये। एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा 74 फॉर 3। रन रेट जो 6 पे था 6.17 पे जा पहुंचा है इस एक रन के साथ। वापिस आ गए हम। ये आपको लाइव पिक्चर्स दिख रहे हैं हम, ये एफएसी स्टेडियम, ये एफएसी ग्राउंड। ओ दैट्स वेरी क्लोज, बहुत क्लोज है, लेकिन अपने अपने आप को खुश नसीब समझेंगे कि वो एलबीडब्ल्यू करार नहीं दिए गए यहाँ पर। बहुत ही बेहतरीन गेंद थी अली असगर की, बहुत ही करीब। बहुत खुश नसीब समझेंगे कि वो अंपायर थोड़ी देर रुक से गए थे, लेकिन निर्णय उनके पक्ष में नहीं गया गेंदबाज के। ये बड़ा हिट जाएगा यहाँ पर। वाइड गेंद के साथ स्कोर जा पहुंचेगा 75 पे। वत्सल दोषी, क्या मैच्योरिटी दिखाई इस नौजवान ने। इस पिछले साल बड़े हिट्स लगा के आउटर, इस साल 20 के अंदर उनकी उम्र है, लेकिन मैच्योरिटी एक बिल्कुल एक परिपक्व खिलाड़ी की तरह इस बार खेल रहे। वो जिम्मेदारी लेकर खेल रहे। देखिए उनका गेम ऐसा है कि वो अपने 50 रन 25-30 गेंदों में इस टूर्नामेंट में आराम से कर सकते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि उनका विकेट काफी जरूरी है। तो एक दो मैचेस में जब वो जल्दी आउट हो गए थे तो कई लोगों ने उनसे बात की थी कि आपने रन आउट कैसे दे दिया, आपने अपनी विकेट कैसे खो दी। तो उसके बाद उन्हें पता है कि वो उनकी टीम के लिए कितने इंपॉर्टेंट है, तो वे बड़े शॉट्स नहीं खेलेंगे। एक बार वही गलती की है, दूसरी बार भी होने की गुंजाइश थी, शायद इसलिए वो डर रहे थे रन लेने के लिए। स्ट्राइक पर आएगा ये बल्लेबाज जिनकी एक कैच छूट चुकी है। क्या वो बड़े हिट के लिए जाएंगे? अगर उनको फुल टॉस मिलेगा तो फिर जाएंगे चौके छक्के के लिए। देखते हैं क्या होता है, बिकॉज उनका जो नेचुरल गेम है, उनका जो नैसर्गिक खेलने का तरीका है, वो बड़े हिट्स लगाने का है। तो क्या अपने वो नहीं स्मार्टली बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक रन के साथ स्कोर को 70, इनफैक्ट दूसरे रन का मौका है यहाँ पर। एक रन के साथ स्कोर 78 फॉर 3। तो रन गति जो है वही 6-6.25 के आसपास मंडरा रही है। अब प्रियेश को हाथ खोलने पड़ेंगे। अब रन्स पीछे भी बल्लेबाज है जो अपना काम कर सकते हैं। तो अगर आपको सिंगल्स निकालने के तो पीछे बल्लेबाज है, आपको बीच में एक चौका हर ओवर में निकालना पड़ेगा और डॉट डिलीवरीज को अवॉइड करना पड़ेगा। शायद वत्सल भी उनसे वही बात कह रहे हैं कि अगर मौका मिल रहा है तो आप बड़े हिट्स के लिए जाओ। बहुत स्ट्रांग है ये खिलाड़ी, हर मैच में क्विक बल्लेबाजी करे। इस मैच में
और संभल के खेल रहे हैं। वाइड के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा 79। और T20 में आपको ज़्यादा टेक्निक की ज़रूरत नहीं है, आप बस बैट स्विंग करते रहो, थोड़ी देर के बाद आपको गेंद फुटबॉल की तरह लगेगा, आप सेट हो जाओगे। अब 12-13 ओवर्स के बाद हमको गेंद अच्छी तरह से दिख रही होगी। और ये पहला शॉट उनका जो विकेटों के पीछे गया है, जो ढंग से उनका कनेक्शन हुआ है। स्कोर 13 ओवर की समाप्ति पर 80, 3 विकेट के नुकसान पर। सो बैक लाइव इस प्रतियोगिता में जो शामिल सारी टीम्स का तहे दिल से यहाँ पर हम शुक्रिया अदा करते हैं। नागदेवी स्पोर्ट्स ग्रुप द्वारा ये आयोजित ये स्पर्धा हमने मैचेस देखे 3 जनवरी को, जिसमें 3 मैचेस देखे हमने। उसके बाद 5 जनवरी के दिन 3 मैचेस हुए, 9 जनवरी के दिन फिर 3 मैचेस हुए। सेमीफिनाले हुए हमारे 12 तारीख को, जो बहुत ज़बरदस्त 2 सेमीफिनाले, जिसमें पिछले वर्ष की जो चैंपियन टीम थी, जो विजेता टीम थी, वो परास्त हो गई, और पिछले वर्ष की जो रनर अप टीम थी, जो अंतिम मैच में खेली थी, जो पराभूत हुई थी, वो भी इस बार सेमीफाइनल में हार गए। तो फिर एक बार उनका सपना टूट गया। लेकिन एच वॉरियर्स बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है उन्होंने, और DPX तूफानी बहुत ज़बरदस्त खेले, लेकिन जहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वहाँ पे थोड़ी उनसे गलती होगी। और प्रियेश और वत्सल, इन पे जिम्मेदारी होगी इस टोटल को 150 के आसपास। 7 ओवर में 70 रन मुश्किल हो जाएंगे, लेकिन अगर वत्सल के लिए अच्छा दिन जाता है, अच्छी शाम होती है, तो शायद वो भी पॉसिबल है। हाँ, ये उनको खेल खेलना पड़ेगा, बैट स्विंग करनी पड़ेगी। तो 1 के साथ स्कोर जाएगा 81 पर 81 फॉर 3। ऐसे ही खेल रहे थे शुरुआती मैचेस में, अपनी बैट जोर से स्विंग कर रहे थे। प्रियेश 32-36 गेंदों पे, वत्सल दोषी 12 पे 12। एक कैच उनका छूट गया है, लेकिन ये बल्लेबाज इस मैच में निर्णायक साबित होगा। वत्सल दोषी बेहतरीन गेंदबाजी और अच्छा सम्मान दिया है। अच्छी गेंदों का सम्मान करना ज़रूरी है। देखिए, लाइफ में भी आप जब कठिन प्रसंग आ जाता है, जब मुश्किलें आ जाती हैं, तो आपको डट के रहना ज़रूरी होता है, तभी आपको संभलना होता है। और क्रिकेट में भी ऐसी, अगर आपके सामने अच्छा गेंदबाज है तो उसको सम्मान देना भी ज़रूरी है। तो जब आपका मौका आएगा, जब आपका टाइम आएगा, तब आप बोलते हैं ना, जिससे कि आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन जब मामला थोड़ा डवाडोल हो, तो अपने आप को संभालना भी जीत के बराबर ही हो जाता है। बेहतरीन गेंदबाजी, उतनी ही जबरदस्त सूझबूझ भरी बल्लेबाजी। काफी अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा शॉट, जबरदस्त क्षेत्र रक्षण और कॉलिंग बिल्कुल चुस्त। 81 पे 3। गेंदबाजी देखो, उन्होंने शॉट ऑफ गुड लेंथ रखी, अच्छी लेंथ पे गेंदबाजी की है, अच्छी जो है वहां पे टप्पा उन्होंने मेंटेन किया है। अगर वो टप्पा थोड़ा सा भी आगे ले लेते हैं तो चौके के लिए जा सकते हैं। टप्पा थोड़ा सा आगे ले लिया जरूर, लेकिन हल्के हाथों से खेल गया है। यहाँ पे 2 रन हो सकते हैं अगर प्रयास करेंगे तो। नहीं, बिल्कुल वहां पर सामने वाली टीम को मौका नहीं देना चाहते। 82 फॉर 3, काफी बेहतरीन ओवर रहा है नील का, वो तीसरा ओवर है इनका। तो ये भली बात ही जानते हैं कि अगर नील को हम के 2 ओवर हम थोड़े सम्मान से खेल लें तो हमें मौका मिलेगा चौके छक्के जड़ने का। स्कोर हो चुका है 82, 82 फॉर 3। और प्रियेश अपने हाथ खोल रहे हैं अब। 83 फॉर 3। आखिरी गेंद 14वीं ओवर का। वत्सल दोषी 13 रन 15 गेंदों पर। प्रियेश 33 बनाए 37 गेंदों में। इस ओवर का ये आखिरी गेंद। 83 फॉर 3।
स्ट्राइक पे होंगे बल्लेबाज पत्सल दोषी। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हल्के हाथों से खेल दिया कवर्स की दिशा में 1 रन के लिए। 84 पे 3, बेहतरीन ओवर। 4 रन मात्र दिए इस ओवर में। 6 ओवर्स का गेंद शेष। मिलते एक ब्रेक के बाद। ये देखते हैं आखिर के ये 36 गेंद, इन 36 गेंदों में 60 रन के आसपास बना पाते हैं क्या वत्सल और प्रियेश। अब प्रियेश पर एक बारीक सी नजर होगी, हर किसी की एक, जिसे कहते हैं ना कि माइक्रोस्कोपिक व्यू से इनको देखेंगे, इनको बहुत करीब से देखेंगे प्रियेश का अप्रोच क्या होता है। मेरे हिसाब से इस ओवर में ये बड़े हिट्स के लिए जाएंगे और शायद इस ओवर में वो 50 के आसपास पहुंचेंगे या तो आउट हो जाएंगे। ये निर्णायक 5 गेंदें होने वाली है और ये आउट होते होते बच गए। बहुत संभल के खेल रहे थे पूरे 14 ओवर तक, अभी तक वो विकेट पे रुके हैं। सो लेग बाई का इशारा अंपायर का। प्रियेश कहना चाहते हैं कि बैट से लेग कर गई ये गेंद। 86 पे 3 और अलर्ट पे रही है बिकॉज वत्सल बड़ा हिट लगा सकता है। उन्होंने सारी जगह पे, यस बेहतरीन शॉट है ये स्क्वायर लेग की दिशा में। क्या शॉट है, सूझबूझ भरा, व्हाट अ शॉट दैट इज। केडी कॉर्पोरेशन जबरदस्त चौका। यस अलर्ट मोड पे रही है बिकॉज यही वो ओवर है जिसमें से चीजें बदल सकती है, एक अलग गति मिल सकती है, जिसे कहते हैं कि मोमेंटम बदलना, चीजों को आगे बढ़ाने की इच्छा होना। बस ये कुछ होने वाला है इस ओवर में। या तो आप पीछे धकेल दिए जाने वाले हो या तो आप आगे बढ़ने वाले हो, तो कुछ अलग होगा इस ओवर में जरूर। ये मौका अंपायर के इशारे की राह देखेंगे। अंपायर शायद प्रयास अच्छा था। स्ट्राइक पे होंगे प्रियेश, ये बड़ा हिट आएगा यहां पर। हाँ बेहतरीन गेंदबाजी। देखिए जयेश 50+ के खिलाड़ी हैं, लेकिन उनका जो देखिए बॉडी लैंग्वेज जिसके कहते देह बोली जिसे कहते कितनी सकारात्मक है, कितनी पॉजिटिव है। ये बड़ा हिट आने वाला है। यहाँ पे कैच या विकेट बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि ये गेंद बहुत दूर तक जाएगी या तो कैच आउट हो जाएंगे। बड़े हिट के लिए गए जरूर है। गेंद जा रही है मिड विकेट की दिशा में। यहाँ पर ये 4 रन हो सकते हैं, नहीं 2। धर्म है वहां पर, अच्छे फील्डर है, 2 रनों के साथ अपनी इच्छा प्रदर्शित कर रहे हैं यहाँ पर प्रियेश की। अब वो रुकने वाले नहीं है। 93 for 3 एंड ऑफ 15 ओवर्स। सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम। ये देखिए ये दर्शक गण फाइनल्स के लिए आए हैं। इसमें सारे परिवार के सारे सदस्य आए। देखो पूरा खचाखच हमारी जो प्लेयर्स की लॉबी वो भर गई है। इसमें कईयों के माताएं आए, कईयों के सिस्टर्स आए, कईयों के वाइफ्स भी आए हैं। सो अपने पति को खेलते हुए देखने हुए, अपने भाई को खेलते हुए देखने के लिए। तो महिला वर्ग भी काफी बड़ी मात्रा में उपस्थित। एक फैमिली अफेयर है जिसमें छोटे आयु से लेके सीनियर सब बच्चों के साथ, बड़ों के साथ सारे इस मैच की फाइनल्स को देखने के लिए आएंगे। सारे हमारे जो घाटकोपर गोगारी समाज के बंधु हैं या आसपास के घाटकोपर के लोग हैं, या तो इस NSG नागदेवी जो लेन है जिसमें इन्होंने अपने क्षेत्र में काफी नाम कमाया, बॉल बेयरिंग, ये सारे जो बांधव है नागदेवी स्पोर्ट्स ग्रुप के, तो उनके परिवार है, एक बड़ा सा परिवार है जो क्रिकेट के माध्यम से और जुड़ा है और मजबूत हुआ है। तो क्रिकेट और खेल तो एक माध्यम है आप सबको साथ में लाना, आपके साथ एक अच्छा समय बिताना और एक अच्छी सी शाम जिसमें आप अपने लोगों को मिल सके, नए दोस्त बनाए और जो पुराने दोस्त है और अच्छी तरह से उनके साथ दोस्ती मजबूत हो।
और अब जब घर जाए तो आपके चेहरे पे एक अच्छी सी मुस्कान होनी चाहिए. इट इज जस्ट टू गेट अ स्माइल ऑन योर फेस. तो क्रिकेट तो एक माध्यम है नए दोस्त बनाना, पुराने दोस्तों के साथ और दोस्ती बढ़ाना और एक अच्छा समय बिताना, ये उद्देश्य है. बेहतरीन गेंद ऑफ उतनी अच्छी तरह से कलाइयों का सहारा लेकर मोड़ दिया है. और यहाँ पर 2 रन पूर्ण करेंगे. प्रियेश काफी भाग चुके हैं अपने लिए, अपने दोस्त पार्टनर के लिए भी है. वत्सल है जो अपनी जो बल्लेबाजी पहले दूसरे गेयर में कर रहे थे, शायद यहाँ से वो थोड़ी सी रन गति को बढ़ाने का प्रयास करेंगे और आखिर के 5 ओवर्स में इस स्कोर को 140-150 के आसपास ले जाने की उनकी इच्छा होगी. ये थोड़ा सा डिसीजन टफ लग रहा है गेंदबाज के लिए. ये गेंद उस जो वाइड की जो मार्कस है उसके ऊपर से निकल गई थी. तो 50-50 डिसीजन था जो गेंदबाज के हक में नहीं गया. अंपायरिंग काफी आला दर्जे की रही है इस पूरे प्रतियोगिता में और ये बहुत ही क्विकली उन्हें डिसीजन देना होता है. कभी कभी उनके फेवर में जाता है, कभी कभी उनके विरोध में यह निर्णय जाता है. 97 पे 3. ये खराब गेंद है और ये बड़ा हिट है. गेंद जाएगा सीधे 4 रनों के लिए. ये केडी कॉर्पोरेशन जबरदस्त चौका. और यहाँ पे अब उनको गियर चेंज करने पड़ेंगे. जो मजबूत कांधे हैं, जबरदस्त ये खिलाड़ी है, बहुत ज्यादा ताकत है उनमें, लेकिन अपनी ताकत को और अपने बड़े हिट्स को उन्होंने इस बार तो कर्व किया है, नियंत्रित किया है वो बड़ी इनिंग्स खेलने की इच्छा से. लेकिन अब ये समय आ चुका है. ये अच्छी गेंद और उतने कनेक्शन ठीक से नहीं हो पाया था, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट्स वत्सल की सराहना की जा उतनी कम है. लेकिन उससे भी ज्यादा सराहना के पात्र हैं वो खिलाड़ी प्रियेश जो पहले ओवर से खेल रहे अब 16 ओवर तक है और बहुत ही जबरदस्त पूरी जान लगा दी उन्होंने इस मैच में. बहुत गलतियां की, सबसे बड़ी गलती की थी साहिल को आउट करके. फिर कई बार उन्होंने प्ले एंड मिस किया है, लेकिन उनका उद्देश्य एक था कि हमें ये अच्छी टोटल बनानी है, एक सेफ बैटिंग करनी है और आखिर के 5 ओवर में हम धमाका कर सकते हैं. अब धमाके का समय आ चुका है. अब बड़ा हिट आ सकता है प्रियेश की बैट से और ये एक हाथ से मारा हुआ, लपेट के मार दिया है. और धर्म ने क्या बेहतरीन कैच. इसलिए कहा धर्म बहुत जबरदस्त खिलाड़ी है, अच्छे कैचेस लेते हैं. एक्सेल विकेट आया, ये एक्सेलेंट कैच धर्म द्वारा. विकेट स्पॉन्सर वाइपर ड्राइव इंडस्ट्रीज मिस्टर प्रतीक्षा और राहुल झा. एक हाथ से मारा हुआ ये शॉट काफी ऊंचा गया, उतना लंबा नहीं गया, लेकिन अच्छी इनिंग्स अपनी टीम को बांध के रखने का प्रयास करने वाली. देखिए आप फिर एक बार, ये एक हाथ से बिल्कुल ऋषभ पंत की तरह मारने का उनका प्रयास था. उतना ठीक से कनेक्शन हुआ कि गेंद थोड़ी सी दूर थी, लेकिन धर्म ने बिल्कुल अपनी छाती से सटकर वो जबरदस्त कैच ले ली है. ये आने वाले बल्लेबाज इस टीम के लिए काफी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इनकी बल्लेबाजी काफी जबरदस्त रही है और उन्होंने छोटे छोटे इनिंग्स खेले, वो निर्णायक रहे हैं. उनकी गेंदबाजी भी अच्छी है, उनकी बल्लेबाजी भी अच्छी है. इनकी यहाँ पे जरूरत होगी. योगेश शायद है वो, जरा सा नाम है ZVF बोरीवली वाला. उसका नाम कैसे पता चलेगा, पूरा नाम देखना पड़ेगा. बोरीवली वाला और बहुत ही जबरदस्त है, अच्छे प्लेयर है और इस टाइम के लिए सबसे योग्य खिलाड़ी है. वत्सल को साथ की जरूरत है और अगर वत्सल अच्छी इनिंग्स खेल लेते हैं यहाँ पर तो शायद इस फाइनल के प्लेयर ऑफ द मैच भी हो सकते हैं और शायद इस प्रतियोगिता के सबसे वैल्यूबल प्लेयर की दौड़ में भी सबसे आगे रह सकते हैं. बेहतरीन गेंद, ये काफी जबरदस्त ऑफ स्पिनर है.
तो 16 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 104 पे 4। भाविन मेहता फिर एक बार विकेटों में, उन्होंने एक विकेट लिए आज। 104 for 4 एट द एंड ऑफ 16 ओवर्स। तो चलिए फिर एक बार देखते हैं आखिर की ये 24 गेंदे इस गेम की दशा और दिशा कैसे निश्चित करते हैं। योगेश भाई, ये इनकी इनिंग्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होने लगी। शायद उन्होंने ये अपना टीम टॉक रहा होगा कि हर गेंद पर आपको हिट नहीं लगाने हैं, आपको एक दो गेंदें खराब ढूंढनी है, उस पर आपको हिट लगाने हैं। ये लोग सारे जो बिजनेस में, सारे लोग बॉल बेरिंग के बिजनेस में। और क्या शॉट है, इसलिए कहता है ये बल्लेबाज धाकड़ है। क्या शॉट है, ये सीधा जाएगा केडी कॉर्पोरेशन सुपर चौके के लिए। इसलिए मैंने कहा योगेश इस मैच की दशा और दिशा निश्चित कर सकते हैं। देखिए इन्होंने बल्लेबाजी कैसी की है। देखिए आपके बिजनेस में भी अगर आपका बहुत बड़ा शॉप है, आपका बहुत बड़ा मॉल है, आपकी बॉल बेयरिंग की दुकान है, तो उसमें शायद आपको रोज सेल नहीं होगा। किसी दिन आपका सेल 5% 10% भी होगा, किसी दिन आपका सेल बिल्कुल जीरो होगा, कोई ऐसा दिन होगा जहां पर बम्पर सेल होगा। तो बिजनेस में भी वैसे होता है, क्रिकेट में भी वैसे है। तो आपको हर गेंद पे चौका छक्का जड़ना जरूरी नहीं है। एक दो गेंदे जब अच्छे आएंगे तो उनको सम्मान देना, उनको डॉट डिलीवरी खेलना भी जरूरी होता है। फिर जब मौका मिले तो एक इक्का दुक्का रन बनाओ जब आपका सेल अच्छा 30-40% हो। और जब बम्पर सेल हो, जैसे चौका छक्के का बॉल है, तो उस पर आप पूरी तरह से दोनों हाथों से आप रन बटोरो। और ये देखिए बिल्कुल उसी तरह से बल्लेबाजी की। उन्होंने एक चौका खेला है, ले लिया है, पहला जो डॉट गेंद थी उसके बाद एक चौका, फिर एक अच्छी गेंद आई, उसको सम्मान दिया। अब उनका प्रयास ये होना चाहिए कि चौके के साथ अगर आप सिंगल डबल्स ना निकालो तो उस ओवर को बड़ी नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से अब वो वापस उनको बड़ी हिट के लिए जाना पड़ेगा, या तो आप स्ट्राइक दे दो वत्सल को। ये बेहतरीन गेंद बैकफुट पे जाके पंच किया। जयेश भाई ने क्या गेंदबाजी की है। जब सामने वाली टीम अच्छी बल्लेबाजी कर रही थी तो अपने अनुभव का पूरा उन्होंने उपयोग किया है। पहली गेंद उनकी बहुत बड़ी वाइड थी, लेकिन उसके बाद बिल्कुल सटीक लाइन लेंथ पर उन्होंने गेंदबाजी की है और अपनी टीम को एक अच्छी पोजीशन में लाने का प्रयास उन्होंने जरूर किया है। आखिर की ये दो गेंदे उनके स्पेल की बड़ा हिट लगाना चाहते थे वत्सल, युवा बल्लेबाज, और यहाँ पे 2 रन लेने का अवसर है। और 2 रन, एक तरफ एक जबरदस्त होंडा की बाइक है, हायाबुसा है, और दूसरी तरफ हमारी स्प्लेंडर है। उस तरह के खिलाड़ी थोड़ी सी उम्र में ज्यादा, उनका ये डिसीजन योग्य भी था। देखिए ऑलरेडी आपने साहिल को खो चुका है रनआउट के स्वरूप में, लेकिन यहाँ पे 10 रन हो भी सकते थे। देखते हैं अब लास्ट गेंद पर अगर चौका आ जाए तो ये ओवर 10 रन का है, जो उतना होना चाहिए आखिर के 4 ओवर्स में। हर ओवर में 10 रन आने जरूरी है। तो शायद योगेश भाई बड़े हिट के लिए जाएंगे। और स्क्वायर कट कर दिया है, क्षेत्र रक्षण, सीधा निकल जाएगी गेंद, रफू चक्कर हो जाएगी 4 रनों के लिए। पॉइंट के खिलाड़ी से गलती हो गई और जो स्वीपर कवर था वो भी गेंद रोक नहीं पाया। बेहतरीन कट शॉट और 4 रन। केडी कॉर्पोरेशन सुपर चौका। कमेटी मेंबर्स हैं हमारे, राजेश सफारिया बहुत जबरदस्त फॉर्म में थे। विपुल जोशी इस बार उतना अच्छा नहीं कर पाए। आसिफ शाह, कुमार बगाड़िया, सुमित शाह, गौरव बखाए, भाविन बोरा, राजेश सरवैया, विपुल संघवी जो आज उनकी मैच फाइनल्स में है। ये सारों की टीम है। उनके प्रयास से 2-3 महीनों का एक लगातार उनके आयोजन होता है, उसका वो प्लान करते हैं और उस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। फिर एक बार एक जबरदस्त सफल आयोजन, चौथा संस्करण में भी इन्होंने बेहतर और बड़ी चीजें आपके सामने प्रस्तुत की है। आखिर की 18 गेंदे ये मारना चाहते थे, कवर्स में गेंद गई है सीधी है। इसलिए मैंने कहा कि भाविन बहुत निर्णायक हो सकता है। भाविन, इसीलिए मैंने कहा शुरुआत में ही भाविन सबसे घातक बल्लेबाज है और भाविन ने अपना दूसरा बड़ा विकेट क्लेम कर दिया। शायद इस प्रतियोगिता का सबसे बड़ा विकेट। इस विकेट की चाह तो हर किसी को रही होगी, लेकिन बहुत बड़ी विकेट, एक्सेल सुपर विकेट। वाइपर ड्राइव इंडस्ट्रीज द्वारा प्रस्तुत प्रतीक्षा और राहुल शाह। तो इसीलिए कहता हूं कि भाविन, देखिए ऑफ ब्रेक गेंदबाज, जब आप ऑफ ब्रेक करते हैं तो जो शॉट कवर में जाना चाहता है वो कवर में मारना चाहते थे,
और देखिए ये टर्न की वजह से गेंद अंदर आ गई, वो फ्लाइट, वो गेंद का डिप होना और वो जबरदस्त कैच, उसको एंटिसिपेट भी करना जरूरी होता है। एक टिपिकल इंटरनेशनल गेंदबाज की तरह उन्होंने वो अपना विकेट हासिल किया, कॉट एंड बोल्ड। तो स्कोर है 114 पर 5 और भाविन ने सबसे बड़ी जो विकेट थी उसको झटका दिया, लेकिन ये व्हाट अ शॉट, बेहतरीन, आज के दिन का सबसे जबरदस्त शॉट, बैकफुट पे आके क्या शॉट लगा है ये। देखिए सबसे मुश्किल शॉट होता है ऑफ ब्रेक खेलना, खिलाड़ी के विरुद्ध खेलना, क्या शॉट था ये, आज के दिन के सबसे अच्छे शॉट्स में से ये शॉट था। केडी कॉर्पोरेशन सुपर चौका, ये जबरदस्त हिट। अगर वो घर जाएंगे पहली गेंद को देखेंगे तो बस उन्हें लगेगा कि विराट कोहली की जैसे उन्होंने शुरुआत की है, ऑफ ब्रेक पर गेंदबाज के खिलाफ बैकफुट पर जाकर परफेक्ट पंच करके चौका हासिल करके अपनी शुरुआत करना लाजवाब। 118 पे 5। ये खराब गेंद है बहुत ही, देखो ये सबसे अच्छा गेंदबाज है, लेकिन जैसे पहले गेंद पे चौका चढ़ गया तो उनके ऊपर भी प्रेशर आ जाता है। उन्होंने क्विकर वन डालने का प्रयास किया था, वो सीधा से एकदम से रविचंद्रन अश्विन की तरह गेंदबाजी फास्ट करने लग गए। काफी बेहतरीन गेंद, ये उनकी खासियत है, उन्होंने अपनी गेंदबाजी पर वहां पे परिवर्तन नहीं लाना चाहिए। उनकी गेंदबाजी की खासियत है कि आप फ्लाइट देते हो, आप अच्छा टर्न देते हो और बिल्कुल अपने कदमों पे ले आए थे उस गेंदबाज को। फिलहाल तो वो लेस कर रहे टाई, तो भाविन मेहता काफी जबरदस्त गेंदबाजी, और आने वाली 3 गेंदे में अगर वो और एक विकेट चटका दे, जो 2 जबरदस्त बल्लेबाज है उनमें से एक को वापस भेज दे तो चीजें बदल सकते। धर्मेश ने क्या शुरुआत की है, पहले गेंद पर जबरदस्त बैकफुट चौका, आज के दिन के सबसे बेहतरीन शॉट्स में से एक। और सामने होंगे आप योगेश भाई बोरीवली वाला। फिर एक बार अच्छी गेंदबाजी, ऑफ ब्रेक गेंदबाजी, ऑफ स्टंप के बाहर धीमी गति से फेंकी हुई है गेंद, उतनी टर्न नहीं हुई, लेकिन इनकी गेंद काफी अच्छा टर्न हो रही है। और इस विकेट में आपको अगर अच्छा टर्न मिल रहा है तो सामने वाली टीम के लिए आप मुसीबतें कर सकते हो। थोड़ी सी रुक कर आएगी, लेकिन आज की विकेट पहले वाले मैचों से काफी बेहतर, गेंद अच्छी तरह से विकेट पे और आउटफील्ड काफी फास्ट लग रही है आज। ये सीधी जाने वाली गेंद, और धर्मेश ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए, वो बस बताना चाहते कि यहाँ पर वो चौके छक्के लगाने आए। अगली गेंद पे विकेट अलर्ट पे होंगे सारे खिलाड़ी, कैचेस का एक मौका बन सकता है। बेहतरीन बैकफुट पंच, फिर एक बार और फिर एक बार, गेंद दोनों पैरों के बीच में से रफू चक्कर हो जाएगी 4 रनों के लिए। उसी प्रकार का ये शॉट था, लेकिन पहले वाला शॉट इससे बेहतर था, लेकिन दोनों का रिजल्ट सही है। 4 बेहतरीन रन्स केडी कॉर्पोरेशन द्वारा प्रस्तुत। 18 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 125, 5 विकेट के नुकसान पे। होगी ना कि हमारे जो मुख्य स्पॉन्सर्स हैं, जिनहर्ष एक वन स्टॉप सॉल्यूशन और मैकेनिकल सॉल्यूशन, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर इंडस्ट्रियल नीड्स, जिन्होंने बॉल बेरिंग से शुरुआत की थी और धीरे धीरे जाकर उस क्षेत्र में एक वन स्टॉप सॉल्यूशन बन गए थे। ऑलमोस्ट सारे फील्ड्स में 37 सालों से मेहनत करके अग्रगण्य कंपनी में माने जाते हैं जिनहर्ष। थैंक यू सो मच। हमारे टाइटल स्पॉन्सर, वाइडर, बिगर, फास्टर एंड गेटिंग बिगर एवरी डे। तो चलते हैं फिर एक बार लाइव पिक्चर्स आपको दिखाई देंगे जेएफएससी विद्या विहार के इस बेहतरीन स्टेडियम से अंडर द लाइट्स। रात हो चुकी है, घर के दिए बुझ चुके हैं, लेकिन लाइट्स यहाँ पे जगह, ओ ये बीमार था, ये छक्के के लिए जाएगी गेंद शायद।
क्या ये ऑल द वे गई? ये अंपायर के इशारे की राह देखेंगे। ये जस्ट नो बॉल और ये 4 रन, बिल्कुल थोड़े से मीटर्स दूर रही होगी। वहां पर डिफेंस कॉलोनी है, लेकिन उनके ऊपर भी अटैक कर दिया था उस गेंद ने, सीधा छक्के के दिशा में जा रही थी ऐसे लग रहा था, लेकिन अंतर उतना नहीं जा पाया, लेकिन गेंद हाथ से निकल गई होगी। थोड़ा सा ड्यू है मोमेंटर में, और ये देखिए, लेकिन उसको ठीक से हिट करना वो भी जरूरी था और योग्य दिशा में। फुल टॉस एक ऐसा एकमात्र जो गेंद है जिस पर आप जितना क्रॉस बैट खेलोगे आपको रिजल्ट अच्छा आएगा। सीधे बैट से खेलने जाओगे तो आप विकेट अपने गंवा सकते हो। तो क्रॉस बैटेड शॉट उस पर सबसे उपयुक्त होता है, और ये शॉट वैसे ही था बिल्कुल। लेकिन दिशा का भी उन्होंने अच्छा चयन किया, गेंदबाजी का जो उनका जो गति था उसका उपयोग करके बस दिशा देने का काम कर दिया। बेहतरीन शॉट, इसलिए मैंने कहा योगेश ये उपयुक्त बल्लेबाज है। इस 3-4 ओवर्स में जब रह जाती है मैच, हर मैच में उन्होंने छोटी छोटी 20-22 रन की जो इनिंग्स के लिए वो काफी महत्वपूर्ण रही है। योगेश बोरीवली वाला 130 पे 5, और ये फ्री हिट है, भागते रहना जरूरी है। याद है इंडिया पाकिस्तान, और फ्री हिट पे जो 3 रन आए थे वही निर्णायक हुए थे। आप सोच रहे होंगे तो स्टंप्स तो ध्वस्त हो चुके हैं, फर्नीचर टूट फूट चुका है, लेकिन बल्लेबाज फिर भी वही है। इसका कारण फ्री हिट, थोड़ी देर के लिए भूल गए थे वो नॉन स्ट्राइकर, लेकिन याद था योगेश को। इस अंपायर मैच के लिए तो हमारे जो अंपायर जो पूरी प्रतियोगिता में इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, ये सचिन है जो स्टंप्स को सजा रहे हैं, और सामने है समीर पारकर। और समीर पारकर ओमान आईसीसी जो एशियन क्वालिफिकेशन राउंड के इंटरनेशनल मैचेस में ऑफिशिएट कर चुके हैं। सचिन काफ़ी बेहतरीन अंपायर माने जाते हैं सारे सर्किट में मुंबई में। तो 2 अच्छे अंपायर्स आपके लिए, जबरदस्त ग्राउंड, और ये जबरदस्त शॉट कवर हुए, 4 रनों के लिए जाएगी शॉट। व्हाट अ शॉट, बिल्कुल एक 2-3 मीटर का ही अंतर था उस खिलाड़ी को रोकने के लिए, लेकिन ये आज गेंद मानो गोली की रफ्तार से निकल रही है। आउटफील्ड में कुछ शायद अलग कर दिया है। जो ग्राउंड के जो ओनर है शिवा भाई, शायद उन्होंने वो जो घास थी उसको और थोड़ी सी पतली कर दी है। गेंद ग्राउंड सारा का सारा हरा भरा लग तो रहा है, लेकिन जब गेंद यहाँ से आज निकल रही है, देखिए कितनी जल्दी से वो गेंद निकल गई, बिल्कुल मौका ही नहीं रहा। और ये जरूरी होता है T20 गेम में, आपको एक क्विक आउटफील्ड का होना बहुत जरूरी है। एक जबरदस्त पिच और एक क्विक आउटफील्ड काफी जरूरी है एक अच्छे मैच के लिए। 134 पे 5 और मनोरंजन हो रहा है। देखिए स्कोर क्या था 10 ओवर के बाद 63। अब उन्होंने रन कितने बनाए हैं 71, वो कितने 8.2 ओवर्स में। तो जब आप जितने रन 10 ओवर में बना लेते उससे 20 रन आप बनस्पत ऐड ही कर लेते हो हर बार, उतनी आपकी टोटल हो जाती है। बस उसी दिशा में ये टीम अपनी मैच को ले जाते हुए, और ये बल्लेबाज रुकेगा नहीं, बेहतरीन 1 बाउंस, 2 रनों के लिए बिल्कुल ये शॉट जाएगा। उतना ही कारगर शॉट था जितना ये चौका था, एक ही रन। शायद आज सोच के आए हैं कि ये इक्का दुक्का भागना नहीं, हमें बस मुझे चौकों के लिए रन भेजना है। उनकी छोटी सी इनिंग्स देखिए और स्ट्राइक रेट लगभग 200 का, इसलिए मैंने कहा जब वो आते ही अंदाजा लग रहा था कि ये बल्लेबाज बिल्कुल इसी चीज के लिए टेलर मेड है, उपयुक्त है। इस धर्मेश ने भी देखिए 9 रन बनाए मात्र 4 गेंदों में, और क्या शॉट है फिर एक बार, इस बार उस दोनों टांगों के बीच में नहीं, दोनों हाथों के बीच में जाकर गेंद समाएगी। 136 पर हर बार ऐसे नहीं है कि यंग 20-22 साल के युवा खिलाड़ी आपको सब कुछ दे सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप 35-40 के पार पहुंच जाओ तो आपकी जो क्षमता है वो कम हो जाती है। कई बार वाइन जितनी पुरानी होती है उतनी ज़्यादा वो असरदार होती है। तो ओल्ड वाइन है, जितना आप ज़्यादा खेलोगे आप में और परिपक्वता आएगी, आपका स्वाद उतना ही बेहतर होता है। वैसे ये खिलाड़ी है, दे आर गेटिंग बेटर बाय एज एंड दे आर गेटिंग सुपर बाय एज। ये गेंद जाएगी सीधा, जबरदस्त फ्लैट छक्के के लिए, ये आया केडी सुपर डुपर हिट छक्का। जो हमारे आज सारे ब्लेजर्स में आए कमेटी मेंबर्स, बहुत ही खूबसूरत एकदम हैंडसम यंग शाहरुख खान बन के, उनको भी वहां पर थोड़ा सा मुसीबत में डाल दिया था, क्योंकि ये अब मिसाइल दाग रहे हैं। ये मिसाइल दागा गया था और गया बराबर टारगेट पे। और कौन है वहां पर, शायद राजीव भाई तो हर जगह चल रहे, इस साल पूरे प्रतियोगिता में छा गए थे, और फाइनल्स में भी गेंद उनको ढूंढ रही है। 142 पे 5 और एक केडी जबरदस्त सुपर डुपर छक्का। विप्सा वॉरियर्स बिल्कुल अपने नाम की तरह ही वॉरियर्स की तरह खेल रहे हैं, अंतिम क्षण तक लड़ रहे, और उन्होंने शुरुआत भी काफी एकदम परिपक्वता से आराम से खेले। पहले 15 ओवर तक उन्होंने इक्का दुक्का रन जोड़े, और जब वक्त आया तोड़ने फोड़ने और जोड़ने का, तो तोड़ फोड़ और जोड़ना हो रहा है। अब ये समय आ गया है
अब ये गेंद तो लगी होगी, घर जाने के बाद एक अच्छा सा वहां पे लव बाइट होगा उनको। 19 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 142, 5 विकेट के नुकसान पर। सो 142 फॉर 5, 142 पे 5। स्ट्राइक पर होंगे धर्मेश और नॉन स्ट्राइक पर होंगे, दोनों का स्ट्राइक रेट देखिए बराबर 200 का। ये जिगर गोल्ड डस्ट है इस टीम के लिए। शुरुआती 3 ओवर्स फेंकते हैं, फिर अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने आते हैं, शुरुआती बल्लेबाजी करने आते हैं, जब चौके छक्के जड़ते हैं फिर अपनी इनिंग्स आगे ले जाते हैं। 142 पे 5, 5 गेंदे शेष, 150 का जादुई आंकड़ा। ये गलत था विकेट कीपर द्वारा, और दोनों तरफ से शायद ओ माय गॉड, ये बहुत बड़ी उपलब्धि यहाँ पर। लास्ट ओवर में जितने डॉट डिलीवरीज आएंगे, विकेट का वहाँ पे ज़रूरी नहीं थी, लेकिन ये एक्सेल विकेट, सबसे बड़ी बात है कि वो डॉट गेंद गई। 2 बेहतरीन गेंदे की है जिगर ने। विकेल एक्सेल विकेट पावर्ड बाय वाइपर ड्राइवर्स मिस्टर प्रतीक शाह, मिस्टर राहुल शाह। ये इतने 6-7 दिनों से इनके जो नाम ले रहा हूँ तो शायद याद भी हो गए अब। और ये नए बल्लेबाज के जोश देखिए कितना है। अब वो विकेट पे जा रहे हैं मानो कि इनके इस पूरे साल का सबसे बेहतरीन सुनहरा मौका है। यह वो होना भी चाहिए। आप लाइफ में जब छोटी छोटी चीज़ें करते हो ना, उसका पूरा भरपूर आनंद लेना ज़रूरी होता है। बिकॉज यही तो होता है लाइफ। क्या होता है, अपनी स्टोरी तो होती है जिसमें रोज़ का जो एक संस्करण जुड़ जाता है। आपके एपिसोड्स ही होते हैं वो रोज़, वो जोड़ के तो आपको लाइफ को याद रखना होता है। आखिरकार अपनी लाइफ एक स्टोरी की तरह। तो ये आज का दिन उनके जो लाइफ की किताबें, उसमें एक अच्छा सुनहरा दिन हो सकता है ये योगेश बोरेली वाला के लाइफ का, बिकॉज वो फाइनल जीत सकते हैं। आपको लग रहा होगा इतनी बड़ी प्रतियोगिता नहीं है, ये तो कोई आईसीसी की टूर्नामेंट नहीं है, लेकिन ये प्रतियोगिता अपने दोस्तों के साथ खेली हुई। दोस्तों के साथ जीतना हारना उसका अलग ही स्वाद होता है। जिगर सामने होंगे योगेश। आहो, ये जाएगी गेंद सीधा, जबरदस्त केडी कॉर्पोरेशन, सुपर डुपर हिट छक्के के लिए। और जब सारी निगाहें थी किस पर, साहिल पारिक पर, सारी निगाहें किस पे थी, वत्सल दोषी पर, सारी निगाहें थी सारे जबरदस्त बड़े बड़े खिलाड़ियों पर। यह बल्लेबाज फिर साबित करता हुआ कि ओल्ड इज ऑलवेज गोल्ड। फैंटास्टिक शॉट, 148 फॉर 6। और ये शायद इस टीम के कैप्टन भी है, शायद कैप्टन या वाइस कैप्टन भी होंगे, क्योंकि हर बार जो निर्णय लेने का क्षण आता है तो ये बल्लेबाज, ये खिलाड़ी हमेशा आगे से रहता है। तो 148 पे 6, आखिर के 9.3 ओवर्स में रन आए 85। ओ, ये फिर एक बार जाएगी। क्या शॉट है, भरपूर ताकत है, जबरदस्त शॉट है ये। क्या बल्लेबाजी हुए, 154 पे 6, 3 लगातार छक्के जड़े थे शुभमन गिल ने आज 200 रन बनाते हुए। इंडिया का सबसे होनहार नया युवा बल्लेबाज, और उन्होंने 3 छक्के जड़कर अपने 200 रन बनाए थे। ये नागदेवी का शुभमन गिल है आज का। क्या शॉट था योगेश का। वो वनडे मैच थे, उसमें 200 जरूरी थी, और ये छोटी सी इनिंग है लेकिन क्या जबरदस्त इनिंग है। कम है लेकिन बम है ये बंदा, जबरदस्त। क्या शॉट है, 2 गेंदे और 2 जबरदस्त छक्के। और चेहरे पे देखिए उनका फोकस, पसीना पसीना हो चुके हैं ये ठंडी में, लेकिन उस पसीने की हर एक बूंद में अपनी टीम के लिए कमिटमेंट है। देखो थक गए, दिखा नहीं रहे, लेकिन बैटिंग देखिए क्या हो रही है। 6 पैक को भूल जाइए, ये जबरदस्त फैमिली पैक है। और ये फिर एक बार प्रयास, इस बार शायद नो मैंस लैंड में गेंद जाके गिर गई। यस, नो मैंस लैंड में गई है, और योगेश भाई उनका स्वागत होगा भरपूर तालियों से। आखिरी गेंद है, आखिरी गेंद में क्या वो और एक छक्का जड़ देंगे। ये स्कोर काफी अच्छा हो चुका है। लास्ट के 93 रन हो चुके हैं,
और जो बेचारे बड़े जोश से खेलने गए थे जय, उन्हें स्ट्राइक नहीं मिलेगी। लेकिन लाइफ में कई बार हो जाता है, जिस चीज़ की आप बहुत ज़्यादा इच्छा प्रकट करते हो, आपसे थोड़ी सी दूरी रह जाती है। मैं आपकी उस माशुका के बारे में नहीं बोल रहा जो आपकी जवानी में थी। कई बार लाइफ में ऐसे हो जाता है, जिस चीज़ को आप बहुत पसंद करते हो आपसे दूरी रहती है। तो शायद जय की भी वही हालत हो चुकी है। स्ट्राइक के लिए आए थे जरूर, लेकिन खुश होंगे क्योंकि बल्लेबाज ये धाकड़ है। 160 पे 6, क्या बल्लेबाजी की है। 97 रन आखिर के 10 ओवर में इस मैच को एक डिफरेंट लेवल पे ले जा चुके हैं ये जबरदस्त खिलाड़ी। 46 नाबाद पे है और इस टूर्नामेंट की सबसे बेहतरीन इनिंग्स, सबसे आखिर मैच में क्या चौका था ये देखिए। आगाज जबरदस्त किया था, अंजाम उससे भी लाजवाब, बेहतरीन ये आखिर के 10 ओवर्स।
परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम। सरजमी का परचम।
क्या बेहतरीन शॉट है ये, लेकिन सीधा उस खिलाड़ी के पास जो मिड ऑफ में मौजूद है उनको थोड़ा सा उन्होंने सीधा रखा है। अब इस गेंदबाज ने जो पहले मैच में गेंदबाजी की थी वो शायद सबसे बेहतरीन ओवर्स थे इस सारे प्रतियोगिता में, ऑलमोस्ट अनप्लेएबल थे और इनकी गेंद घूमती है, सीम से घूमती है और स्विंग भी होती है, तो दोनों तरह से वो मुश्किलें साबित करते हैं। बहुत कम गेंदबाजों को इनकी तरह गेंदबाजी करने का यहाँ पर अवसर मिला है और बहुत ज़बरदस्त गेंदबाजी की इस यंग बल्लेबाज ने। बल्लेबाजी से ज़्यादा गेंदबाज के स्वरूप में काफ़ी घातक रहे। 160 रनों का लक्ष्य है, 161 रनों का, माफ कीजिए। 97 रन्स बने थे आखिर के 10 ओवर्स में। 9.7 पहले 10 ओवर में 6.3, आखिर के 10 ओवर में 9.7। तो स्ट्राइक पे हैं जिगर और परिन ठक्कर। जिगर इस टीम के लिए सबसे जबरदस्त ओपनिंग बल्लेबाज रहे, इन्होंने अच्छी इनिंग्स दी है, 40 रन 30 रन के महत्वपूर्ण इनिंग्स खेले हैं, अच्छी शुरुआत देते हैं। ये बहुत मतलब आक्रामक खिलाड़ी तो नहीं है लेकिन एक अच्छी शुरुआत देने के लिए अच्छी टेक्निक वाले बल्लेबाज है। ये शायद ब्रश होकर गई है पैरों से, ऐसे पूछ रहे, या पैरों में ब्रश होकर गई है और ये वाइड का डिसीजन अपना वापस लेते हुए अच्छा यहाँ पर देखने को मिला है। गुड स्पोर्ट्समैनशिप दिखानी है जिगर जी ने, कि जिगर उन्होंने कह दिया कि उनके पैरों से गेंद ब्रश होकर गई थी तो अंपायर को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा। वेरी वेल डन। यही सारी चीज़ें हैं जो आपका व्यक्तित्व निर्धारित करती हैं, आपकी ईमानदारी भी उतनी ही ज़रूरी है। स्ट्राइक पे जिगर, ये स्विंगिंग डिलीवरी थी, ऑफ साइड ऑफ स्टंप थी, वाइड की मांग जरूर थी लेकिन वो स्लॉट में थी चौके मारने की। इनकी गेंद देखिए, दिशा थोड़ी सी गलत थी लेकिन स्विंग हो रही है हवा में स्विंग होती है और अच्छे सीम पे पड़ने के बाद सीम भी होती है, तो ये मुश्किल हो जाती है बल्लेबाज को जब गेंद लहराती है। तो इस बार पहली ओवर जिसमें एक दो गेंदें थोड़ी सी दिशा में भटक के पहले डाउन द लेग साइड थी, ऑफ स्टंप के बाहर थी, शायद ये सटीक यॉर्कर रहेगी। ये गेंद यॉर्कर की दिशा में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। यस यॉर्कर, यस यॉर्कर तो था लेकिन थोड़ा सा दिशा से अलग। एक ओवर की समाप्ति पर एक बिना विकेट के नुकसान पे डीपीएक्स डायनामाइट्स, ये है ग्रैंड फिनाले जिमहर्श टिमकेन अडोर कप 2023 और डीपीएक्स डायनामाइट्स पीछा कर रहे 161 रनों का 19 ओवर में 160 रनों की। लाइव देखिए वापस एक बार। आखिर के 19 ओवर से इस बहुत लंबी प्रतियोगिता है जिसमें हम 3 तारीख से हमने शुरुआत की थी और पूरा महीना लगभग होते आ गया ये, और इन 15 दिनों में भरपूर मनोरंजन हुआ है। जिसको क्रिकेट से प्यार है, लगाव है, और अपने दोस्तों के साथ, अपने सहकर्मियों के साथ जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो बॉल बैरिंग नागदेव स्ट्रीट, और ये मौका है शायद पहली विकेट। ओह, विपुल बहुत बड़ी चूक हो सकती है, ये विकेट का अवसर था विपुल को, बहुत ही क्विक खिलाड़ी है लेकिन आज उनसे भी चूक हो गई। ये कंपटीशन देखने लायक होगा। अब जो मुकाबला होगा विपुल संघवी और जिगर के बीच में। विपुल देखिए तकनीकी स्वरूप से कितने अच्छी तरह से वो खड़े रह रहे हैं। थोड़ी सी मुसीबतें उनको आई थी जरूर वत्सल की गेंदबाजी में, अब आक्रमण करना चाहेंगे वो विपुल की गेंदबाजी में। विपुल ने काफी सटीक गेंदबाजी की इस पूरी प्रतियोगिता में। पहले मैच में उनपे थोड़ा सा प्रहार हुआ था लेकिन दूसरे तीसरे मैच में क्या जबरदस्त गेंदबाजी की थी। वो उनपे प्रहार करने का प्रयास होगा, हाँ, लेकिन प्रयास असफल। ड्राइव्स लगाना चाह रहे, ड्राइव्स कनेक्शन नहीं हो रहे। विकेट कीपर के स्वरूप देखिए, योगेश इस टीम की रीढ़ की हड्डी है, विकेट कीपिंग करते हैं, फिर गेंदबाजी अच्छी कर लेते हैं। जब पिछले मैच में एक हाथ मैच में उनको उनके ऊपर पिटाई जरूर हुई थी लेकिन बल्लेबाजी लाजवाब है उनकी। ये पहली विकेट, पहली सफलता, पहला यश, और
कैच किसने लिया है? वत्सल ने। कॉम्बिनेशन ओपनिंग प्रारंभिक गेंदबाजों का इन्होंने पहला विकेट लिया, एक सुपर एक्सेल विकेट, एक्सेल पावर्ड बाय वाइपर ड्राइव इंडस्ट्रीज। जिगर बहुत बड़ी विकेट वापस जाते हुए। विरल, प्रदीप और संजय की ये टीम विप्सा वॉरियर्स, ये जो दोषी फैमिली है ये काफ़ी खुश होंगे इससे, बिकॉज उनके टीम को एक ज़बरदस्त शुरुआत दी है। बहुत बड़ी विकेट जिगर की, जो इस टीम की टोटल को आगे ले जाने की क्षमता रखते थे, उनको ही चलता किया। नीरव जिन्होंने ज़बरदस्त विकेट कीपिंग का यहाँ पे मुजाहरा पेश किया था, वो अब आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए। नंबर 13 पर होंगे परीन ठक्कर, जो नॉन स्ट्राइकर इन पर है। अक्टूबर 2022 1 अक्टूबर से नया रूल आया कि जब भी नया बल्लेबाज आए, भले वो क्रॉस हो जाए या ना हो जाए कैच के दरमियान, उनको स्ट्राइक पर रहना अनिवार्य हो चुका है। अगर आप रनआउट होते तो ही, अगर आप नॉन स्ट्राइकर एंड पे हैं तभी आपको जाना होता है, अन्यथा आपको हर जो नया बल्लेबाज आता है वो आपको स्ट्राइक पर रहना, ये रूल 2022 अक्टूबर 1 से लागू कर दिया गया है। तो 2 पर 1 पहला विकेट, पहली सफलता विपुल के नाम। यही वो मौका होता है कि सामने वाला गेंदबाज जब आपके लिए मुसीबतें कर रहा है, जैसे कि वत्सल कर रहा है, दूसरे गेंदबाज को विकेट निकालने में ज्यादा आसानी हो जाती है, क्योंकि उन पर प्रहार करने का अवसर नहीं छोड़ना चाहते और वहीं पर आपको विकेट मिलने का मौका मिल जाता है। चिंतन आए हैं नए बल्लेबाज। विकेट कीपिंग का शायद जिम्मा इन्होंने लिया था, काफी अच्छी विकेट कीपिंग की थी। गेंद जाएगी सीधा। ये फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप 2022 नहीं है, ये फाइनल मैच है, लेकिन जो इसके हाथ में गेंद है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाला है। दर्शक, उनकी गेंदबाजी निर्णायक हो सकती है। वो थोड़ी देर के बाद गेंदबाजी करने आएंगे। एक कदमों से वो गेंद रुका दिया जरूर था, लेकिन काफी अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने पूरे प्रतियोगिता। भाविन मेहता और दर्शक, ये दोनों ने काफी प्रभावित किया इस पूरे प्रतियोगिता में। जबरदस्त परफॉर्मेंस रहे वो अपने अपनी टीम के लिए, और आज जबरदस्त प्रदर्शन करने की इच्छा लेके आए जरूर है। विपुल संघवी सबसे सीनियर खिलाड़ियों में से एक और सबसे जबरदस्त प्रदर्शन करते हैं। और जयेंद्र भी आपको दिखेंगे। जयेंद्र भाई, गेंदबाज, ओ क्या शॉट है ये, परीन ठक्कर की कैच, ओ माय गॉड, सीधा फिर वही कॉम्बिनेशन, कॉट वत्सल, बोल्ड विपुल, 2 वी फॉर वत्सल, वी फॉर विपुल, और आप जानते हैं वी फॉर विक्ट्री भी होता है, शायद उसी दिशा में वो जा रहे हैं। बहुत बड़ी विकेट, एक्सेल सुपर विकेट, वाइपर ड्राइव इंडस्ट्रीज में से प्रतीक्षा और राहुल झा द्वारा प्रस्तुत जबरदस्त विकेट। भाविन मेहता हैं वो हरफन मौला खिलाड़ी जिन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी की थी। उन पे जिम्मेदारी दी गई है कि अब वो गेंदबाजी से बल्लेबाजी कर अपने प्रदर्शन दिखाए। भाविन मेहता नॉन स्ट्राइक एंड पे होंगे क्योंकि लास्ट गेंद पे वो विकेट गई थी। चिंतन, दोनों ही नए बल्लेबाज, दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज अपने डगआउट में। फिलहाल तो गेंद ठीक से आ नहीं रही है बैट पे। जो गाना था पुराना, ढूंढो ढूंढो रे साजना, वैसे गेंद को ढूंढने का काम करेंगे बल्लेबाज, क्योंकि नई गेंदें लहराएगी जरूर और मुसीबतें जरूर प्रदर्शित करेंगे। लेकिन भाविन मेहता जैसा जो टेक्निकली परफेक्ट है, जिनकी तकनीक काफी सटीक है, वो बल्लेबाज इस तरह के मौके के लिए काफी उपयुक्त। उनको अब एक जिम्मेदारी भरी भरी पारी खेलनी पड़ेगी।
60-70 के आसपास 10 ओवर में ये स्कोर को ले जाना होगा, फिर आखिर के 10 ओवर्स में 90-100 जो भी रन है वो जोड़ने का प्रयास करना होगा। उसके लिए उनको वहाँ पर विकेट पर रुकना ज़रूरी है, और इस तरह के सिचुएशन के लिए काफ़ी कारगर साबित हो सकते हैं भाविन। एक टेलर मेड खिलाड़ी है इस सिचुएशन के लिए, लेकिन उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत ही तेज तर्रार ज़बरदस्त युवा गेंदबाज वत्सल दोषी, और पहली गेंद पर इनसाइड हाफ में बीट किया है बल्लेबाज को। और वत्सल भी जानते हैं कितनी इंपॉर्टेंट ये, कितनी महत्वपूर्ण उनकी विकेट होने वाली है। अगर ये विकेट यहाँ से चटका देते तो लगभग जीत के दरवाजे को वो खोल ही देंगे और एक कदम और पास जाएंगे उस चमचमाती ट्रॉफी की तरफ, जो जिसके लिए ये सारे खिलाड़ी जूझ रहे हैं लगातार 3 तारीख से आज की तारीख तक। देखते हैं कि भाविन इस मैच में अपनी टीम को लगातार बनाकर रखने का प्रयास करते हैं या वत्सल फिर एक बार और एक विकेट चटका देते हैं। ये काफी देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से खेला हुआ ये शॉट था। भले 1 रन के लिए शॉट क्यों ना जाए, लेकिन उससे वो प्रदर्शित कर देता है कि कितनी अच्छी उनकी तकनीक है। गेंद थी मिडिल स्टंप पर, उनको हल्के हाथे से उसको सहेल के ढकेल दिया 1 रन के लिए। तो भाविन इस मैच का निर्णायक खिलाड़ी हो सकते हैं, जिन्होंने इस जबरदस्त बल्लेबाजी की, गेंदबाजी की और अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं। और सामने होंगे वत्सल, एक जबरदस्त उनका जो आह्वान होगा वो सामने वाली टीम के लिए, चैलेंज होगा सामने वाली टीम के लिए। ये काफी क्लोज हो सकता है, लेकिन लेग स्टंप के बाहर गेंद पिच होने की वजह से एलबीडब्ल्यू को समीकरण से निकाल ही दिया जाता है। अंपायर के इशारे का हम इंतजार करेंगे, एक लेग बाय अंपायर का इशारा। इस 1 रन के साथ स्कोर है 6-2। 6 रन 2 विकेट के नुकसान पर गेंदबाजी करने के लिए आए वत्सल दोषी। सामने होंगे भाविन। अगर वत्सल अगले 2 गेंदों में कुछ चमत्कार कर देता है तो शायद ये मैच जीतने के लिए उनका ये बहुत ही बड़ा कदम होगा। बेहतरीन बल्लेबाजी, 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 7 पर। भरोसा देने वाली बल्लेबाजी, विश्वास पैदा करने वाली बल्लेबाजी, ऐसी बल्लेबाजी जिससे बाकी खिलाड़ियों का मनोधैर्य भी ऊंचा होगा। बाकी खिलाड़ियों में जो डवाडोल हो गया होगा, जिनका आत्मविश्वास, उनको आत्मविश्वास देने वाली पारी खेल रहे हैं भाविन। भले ही उन्होंने 2 रन बनाए 3 गेंदों में, लेकिन गेंद को बीचों बीच लिया है अपने बल्ले में, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और फिलहाल चिंतन थोड़ा सा जूझ रहे हैं क्योंकि गेंद उनके बैट के मिडिल से नहीं लग रही है, लेकिन उनकी भी देखिए वो जूझने की क्षमता है। बैट को बिल्कुल नीचे रखा है, जमीन से उठा ही नहीं रहे, स्टंप्स को अपने संभालने का सब प्रयास है उनका। देखिए स्मार्ट बल्लेबाजी, जो मुसीबत है, जो जिससे हमें हमारी टीम को मुसीबत है, उसको रोकने का उनका प्रयास। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 7, 2 विकेट के नुकसान पे। गेंदबाजी मार्ग पर विपुल संघवी, अभी तक हमें एक भी चौका दिखाई नहीं दिया है, लेकिन आने वाली 2-3 गेंदों में शायद इस इनिंग्स का पहला चौका दिखाई देगा। हल्के हाथों से गेंद को ढकेल दिया है 1 रनों के लिए, 1 रन के लिए। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचेगा 8 पर 8 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। मैच खींच के लगे हैं। स्कोर 1 रन से आगे बढ़ता हुआ जहां पहुंचा है 9 पर, अभी भी सिंगल डिजिट में है ये टोटल।
तो ऐसे किया, मैं सोचा क्या कर रहा है, मैं ऐसे कर रहा है। स्कोर है 9-9, 2 विकेट के नुकसान पे, 9 for 2, 2.57 फिलहाल रन गति है, और रन गति चाहिए 192 रन 99 गेंदों, 9.21। बेहतरीन कवर ड्राइव। मुश्किल समय है, लेकिन इसमें से भी अपनी टीम को उभारना, अपने आप को उभारना जरूरी है। जिगर काफी अच्छे बल्लेबाज, लेकिन उनकी विकेट खो गई है। वो अगर अभी फिलहाल तो हमारे पास में जो रिफ्रेशमेंट है वहाँ पे थोड़ा सा रिफ्रेश हो रहे हैं, अपने आप के लिए कुछ खाने की चीज़ों का प्रबंध कर रहे हैं, लेकिन वही उनकी विकेट काफ़ी महत्वपूर्ण थी। 12 नंबर की उनकी जर्सी, तो 12 नंबर की जर्सी आपको पता ही चल गया होगा उनका फेवरेट खिलाड़ी कौन होगा। 12-12 पर उनका डेट ऑफ बर्थ, 12 गेंदों में हाफ सेंचुरी बनाने वाले। और हर प्लेयर जब जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता है 83 के बाद, उस हर वर्ल्ड कप के वो हिस्सा जिसमें हिस्सा रहे, वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे। अंडर 19, फिर उसके बाद T20 वर्ल्ड कप, फिर उसके बाद वनडे का वर्ल्ड कप। हर प्लेयर हर टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे युवराज सिंह। 11 पे 2 आखिरी गेंद, क्या बेहतरीन ये शॉट था। मैंने इसीलिए कहा था कि शायद इस ओवर में पहला चौका आ सके, लेकिन एक ही खिलाड़ी मौजूद काउ कॉर्नर में, सीधा उसी की दिशा में। 12 पे 2, 4 ओवर की समाप्ति पर 9.31 रिक्वायर्ड रन रेट। सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरसमी। और थैंक यू सो मच DYZB बेरिंग्स। आज का खाना तो लावाजवाब था, लेकिन हर दिन जब जब आपके टूर्नामेंट्स में मैचेस रहे तो उन्होंने फूड स्पॉन्सरशिप दी है। तो अन्नदाता, थैंक यू सो मच। राकेश वाघेला एंड निशांत शाह पिछले साल भी हमारे ये फूड स्पॉन्सर थे, इस साल भी हैं, जिन्होंने लाइव पिक्चर्स का योगदान दिया है। भावी इम्पैक्स मिस्टर चित्रेश उड़ानी, NK ट्रेडिंग श्री श्याम इम्पैक्स, अजय अग्रवाल सर, ये दोनों भी यहाँ पर मौजूद है आज। और हमारे मीडिया पार्टनर्स QLH इंफॉर्मेशन सोल्यूशन, ऑटोमेशन सोल्यूशन, मिस्टर संजय शाह, कुंजल शाह और हरीश मेहता, थैंक यू सो मच। और जिनहर्ष हमारे टाइटल स्पॉन्सर्स हमेशा की तरफ से जुड़े हुए। बहुत ही बेहतरीन गेंद, उतने ही ज़बरदस्त तरीके से टर्न कर दिया, याद दिलाते हैं किसी इंटरनेशनल खिलाड़ी की तरह बल्लेबाजी कर रहा है ये बल्लेबाज भाविन मेहता, जिन्होंने 6 रन बनाए मात्र। आप सोच रहे होंगे क्यों इनकी इतनी सराहना हो रही है, लेकिन जो 6 के 6 रन है बिल्कुल बैट के बीचों बीच खेले हुए शॉट्स। और चिंतन दूसरी तरफ एक जुझारू पारी खेल रहे। चिंतन के पास उतनी क्षमता नहीं है, तकनीक उनके पास उतनी ज़बरदस्त नहीं है जितनी की भाविन की है, लेकिन अपनी जो निर्धारित क्षमताएं है उनका वो पूरा इस्तेमाल करके प्रयास कर रहे कि अपने विकेट को वो बचा सके। और सामने बहुत ही खतरनाक गेंदबाज, इस प्रतियोगिता का सबसे घातक गेंदबाज है वत्सल दोषी। पूरे संस्करण चौथा इस गेंदबाज का रहा है वत्सल दोषी। पिछले साल उन्होंने बस एक झलक से दिखला दी थी, इस साल उन्होंने अपना पूरा रूप धारण किया है, जिसमें काफी परिपक्वता दिखी है उनकी गेंदबाजी में। वत्सल दोषी स्मार्ट बल्लेबाजी, कठिन विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी राह निकालने का ही तो नाम जिंदगी है। 14 पे 2, रन संख्या बहुत पीछे क्यों ना चली गई हो, रन संख्या ऐसी है जिससे उनकी टीम थोड़ी सी मुसीबत में है, लेकिन इसी को तो स्ट्रैटेजी कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्लान A, प्लान B, प्लान C। अब आप मुसीबत में फंस गए तो आपको दूसरे प्लान का भी तैयारी रखनी पड़ेगी। 14 पे 2, 4.2 ओवर्स के बाद 147 रन बनाने 94 गेंदों में। क्या बेहतरीन गेंद थी, उतनी ही अच्छी तरह से खेल दिया, मोड़ दिया अपने कलाइयों के सहारे से। स्कोर जा पहुंचा है 16 पर, माफ कीजिए 15 पर, 15 for 2, 146 रन बनाने हैं, 93 गेंदों का खेल शेष, 9.42 की रन गति की आवश्यकता। लेकिन याद रखिए 97 रन बने थे आखिर के 10 ओवर्स में, और वत्सल के बिना बने थे। तो उनके पास भी बल्लेबाज है, उनके पास भाविन है, जो फिलहाल तो काफी अच्छे लग रहे हैं अपनी बैटिंग तकनीक से। 15 for 2 ये मौका था, लेकिन खिलाड़ी वहां पे रखा है बिल्कुल
फाइन जिसे कहते हैं थर्ड मैन रखा है, सीधा रखा है, विकेटों के पास रखा है, उसका एंगल काफ़ी कम रखा है, 30 डिग्रीज पे उनको रखा है बिल्कुल, ताकि गेंद अगर तेजी से निकल के 4 रन के लिए जा रहे तो उनको रोकने का उनका काम है। और मौका बनाया था वत्सल ने, मेहनत वत्सल कर रहे, गेंदबाजी अच्छी कर रहे, लेकिन उसका फल दूसरी तरफ मिल रहा है, क्योंकि उनकी गेंदबाजी इतनी सटीक हो रही, रन बनाने के मौके नहीं मिल रहे, तो वो अवसर ले रहे हैं, चांस ले रहे हैं विपुल के खिलाफ, और वहीं पे मौके बन रहे। तो यहाँ से मौका नहीं है, दूसरी एंड से मौका लेने की कोशिश हो रही है, और उसी मौके का फायदा उठाकर विकेट मिलने का मौका बन रहा है। तो ये कोई इंडिया पाकिस्तान का एड मौके के बारे में नहीं कह रहा हूँ, उनकी गेंदबाजी जबरदस्त हो रही है, बिल्कुल एक साहूकार की तरह कंजूसी कर रहे। 2.5 ओवर में मात्र 8 रन खर्च किए। जो पुराने जमाने में जमींदार जो साहूकार होते थे, एक एक रुपये के लिए तरसाते थे, ये बंदा गेंदबाज भी वैसी है, एक एक रन के लिए तरसा रहा है सामने वाली टीम को। 8 रन खर्च किए, तीसरा ओवर चल रहा है, 2.66 उनका जो इकोनॉमी रेट है वो है। क्या बेहतरीन गेंद, उतनी हल्के हाथों से खेल के निकालिए, एक माफ कीजिए बिंदी गेंद रहेगी, जबरदस्त। पहले उनका 3 ओवर वत्सल दोषी, मात्र 8 रन, 2.66 का उनका इकोनॉमी रेट, काफी किफायती गेंद है। यस, 16 पे 2, 5 ओवर की समाप्ति पर रन गति अगर बात करेंगे तो 3.2, और इस गेंदबाज ने 2 ओवर में मात्र रन खर्च किए 6। तो जितनी किफ़ायती गेंदबाजी वत्सल ने की, उतनी ही किफ़ायती गेंदबाजी विपुल ने भी की है। लेकिन विपुल के लिए एक बात और सराहना करने लायक है कि विपुल ने 2 विकेट महत्वपूर्ण चटकाए। तो इसने अनुभव का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, अनुभव को आप अनदेखा नहीं कर सकते, उसको वापस एक बार दिखाते हुए विपुल क्यों उन्हें इस प्रकार के क्रिकेट का भीष्म पितामह माना जाता है। एक समय था जब वो युवा थे, तो ये जो टूर्नामेंट्स टेनिस बॉल के होते थे, अपनी अकेले की बल्लेबाजी पर वो जीता कर दिया करते थे। अब उन्होंने अपना रोल बदल लिया है गेंदबाज के स्वरूप में। क्या शॉट है ये देखिए, गेंद को बस जिसे कहते हैं अंग्रेजी में शॉवल कर दिया, खोद के निकाल के 4 रनों के लिए ढकेल दिया। केडी कॉर्पोरेशन चौका। लेकिन यही तो बात है, वत्सल की ओवर में रन नहीं आते तो प्रयास करते विपुल की ओवर में, बहुत बार सफल नहीं हुआ, इस बार सफल हो गए, 4 रन जोड़ लिए। चिंतन ने गेंद को उड़ा दिया है फाइन लेग की दिशा में 4 बेहतरीन रनों के लिए। केडी कॉर्पोरेशन सुपर चौका। बीस 2 विकेट के नुकसान पे 5 गेंदों का खेल शेष, 141 रनों की दूरी। विपुल थोड़े से नाराज है, देखिए गेंद को अच्छी गेंद की और उसके बाद बिल्कुल आक्रामक दिखाई दिए गेंदबाज बल्लेबाज की ओर बढ़ता हुआ। हाँ, ये प्रहार किया है, अगर आप हमसे खेलेंगे तो जवाब मिलेगा। अरे क्या बात है, फुटबॉल की मैच चल रही है, दोनों ने ही अपने राइट फुट और लेफ्ट फुट दोनों ही आजमा लिए। पीछे वाले खिलाड़ी का लेफ्ट फुट काम में आ गया। ऐसे लग रहा था कि मेसी और रोनाल्डो एक ही टीम में खेल रहे हैं और दोनों से वो फुटबॉल निकल गई है। आखिरकार गेंद को रोक दिया गया 23 for 2। फिर एक बार आपसे कह दूं कि आप बच्चे देख रहे हैं तो ये बिल्कुल ना करें, क्योंकि गेंद को हाथ से ही रुकाना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये कई सारे लोग 30+ हो चुके हैं, तो उनको झुकना तुरंत उतना आसान नहीं होता। आप ये सब चीज़ें मत कीजिए, क्योंकि गेंद आपके एंकल्स को जाके लग सकती है, आप उसमें चोटिल हो सकते हैं, तो अपना ध्यान ज़रूर रखें। दर्शक गेंदबाजी करने आएंगे तो कुछ मज़ा आएगा, बहुत ज़बरदस्त गेंदबाज है दर्शक, रुक रुक के गेंदबाजी करते हैं, ऑफ ब्रेक गेंदबाजी, बिल्कुल भाविन की तरह। विपुल सांघवी के खिलाफ आक्रमण हुआ है, 7 रन जोड़े गए इस ओवर में, और जब मौका लेते हैं बल्लेबाज तभी तो विकेट बनाने का मौका भी मिलेगा।
तो रनों की तलाश में अगर बल्लेबाज होंगे तभी मौका बने। भाविन आक्रमण करेंगे, शायद आने वाले 3 गेंदों में अपना पहला चौका ढूंढने का प्रयास करेंगे। हाँ, जोर हिट 4 हिट लगाने का प्रयास करेंगे। गेंदबाजी स्मार्ट थी, ओवर पिच गेंद थी, और जो एज था बैट का अंदरूनी किनारा लग के जो एज लगा था वो सीधा पैड्स पे जाके टकराया, ना कि विकेटों पे। तो अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे भाविन, और थोड़ा सा बदनसीब समझेंगे गेंदबाज विपुल संघ भी अपने आप को। 14 रन 2.4 ओवर्स में काफ़ी बेहतरीन किफ़ायती गेंदबाजी और सफल गेंदबाजी मैं कहूँगा। 2 विकेट्स उन्होंने लिए, लेकिन चिंतन जाएंगे बड़े हिट के लिए। और ये तीसरी सफलता, बैट ही फेंक दिया उन्होंने गुस्से में। तीसरी सफलता 24, और विपुल ने 1 नहीं 2 नहीं 3 बार जैकपॉट हिट किया है। एक्सेल विकेट, सुपर विकेट। वाइपर ड्राइव इंडस्ट्रीज प्रतीक्षा और राहुल शाह अपने आप से थोड़े से नाराज होंगे चिंतन, बिकॉज वो चाहते थे कि इस टीम को आगे ले जाए 10 ओवर तक। आखिरी गेंद पे तीसरी विकेट, एक एज लगकर अंदर की तरफ आ गई, नाराज हो गए। वो जीतना चाहते हैं और विपुल के खिलाफ विकेट नहीं देना चाहते। और अगर आप घर जाएंगे तो ये आप रिप्ले देख लीजिए, हमारे ब्रॉडकास्टर्स को भी काफी खुश आए। देखिए उनका इमोशंस, एक देखिए, एक तरफ खुशी है, एक्सटेसी, दूसरी तरफ एगनी। दो इमोशंस आपको एक ही फ्रेम में दिख गए। एक 7वें आसमान पे है और एक काफी दुखी है। तो जैसे हम खेलते थे बचपन में, अगर आउट होने के बाद हम बैट फेंक के चले जाते थे, बिल्कुल हर इंसान में एक बच्चा होता है, तो उसका प्रदर्शन उन्होंने ज़रूर किया। वापिस बता रहा हूँ, जो बच्चे देख रहे हैं 15, 16, 17 साल के, कभी भी अपने जो औजार होते हैं उनको फेंका नहीं गए। आप कोई भी काम करें तो बैट, देखिए सचिन तेंदुलकर अपनी हर बैट को अपने बच्चे की तरह संभालते थे। क्या शॉट है ये, बेहतरीन ये शॉट, फैंटास्टिक हिट, क्षेत्र रक्षण अच्छा वहां पर। प्रियेश आज काफी चुस्त तंदुरुस्त दिखाई दिए। 6 ओवर की समाप्ति पर 25, 3 विकेट के नुकसान पे। हाँ, सो 25 पे 3। फिलहाल तो आपको ऐसे लग रहा है कि ये वन वे ट्रैफिक है, लेकिन कई बार लाइफ में, क्रिकेट में आपको ऐसे लगता है कि चीजें हाथ से निकल गई और तभी आपको वहां से उभर कर निकलना होता है। तो 25 पे 3, ये गेंदबाज इन्होंने काफी प्रभावित किया। बहुत सारे विकेट, बैग भर भर के विकेट अपने घर ले गए ये गेंदबाज। दर्शक सालूट। तो फिर एक बार उसी तरह के प्रदर्शन की अपेक्षा होगी उनसे, और हर मैच में उन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी की थी। रविचंद्रन अश्विन की रुक रुक के गेंदबाजी करते, और ये बल्लेबाज बढ़ बढ़ के आगे मारने का प्रयास करेगा अब, क्योंकि समय आ चुका है कि आक्रमण करे। 25 पे 3, और जो खतरा था वो टल गया है। पहले 3 ओवर्स का जो वत्सल का था, लेकिन वत्सल से डर लग रहा था और विकेट गवा बैठे सब विपुल को। तो उन्हें भरोसा था कि वो विपुल के खिलाफ रन बनाएंगे। प्यार में, क्रिकेट में, अपने जीवन में भी धोखा वहीं पे होता है जहाँ पे सबसे ज्यादा भरोसा होता है। तो सबसे ज्यादा भरोसा था कि हम विपुल की गेंदबाजी पे रन बनाएंगे, और सबसे ज्यादा विकेट भी उन्होंने विपुल को ही देकर चले गए। डर था वत्सल का, चोट पहुंचा गया विपुल। बेहतरीन ये गेंद, ये बाहर जाने वाली गेंद। अभी उन्होंने जानबूझकर दूसरा फेंका या अपने आप हो गया वो बात अलग है, लेकिन बेहतरीन ये गेंद दूसरी तरफ निकल गई। काफी जबरदस्त गेंदबाजी की। पूरी प्रतियोगिता में दर्शक काफी जबरदस्त गेंदबाजी की उन्होंने। भाविन और दर्शक लगभग सेम टाइप के गेंदबाज, और सेम उन्होंने दोनों ही समान उतने ही जबरदस्त गेंदबाजी की है। जबरदस्त ऑफ ब्रेक गेंदबाज। और अगर ये जो यहाँ पे प्रतियोगिता होते हैं इस ग्राउंड पे, कई सारे लीग्स होते हैं, तो उसमें BC डिवीजन में ये पूरी नागदेवी की टीम आ जाए तो इसमें शायद साहिल पारे खेल सकेगा, भाविन मेहता खेल सकेंगे। दर्शक का की जगह तो बनती है, उसी के साथ कोई सीनियर खिलाड़ी भी 50 के ऊपर वाले भी खेल सकते हैं इस टीम में। तो उनकी भी एक टीम बनाकर अगर इस एक आध लीग में अगर वो खेल ले, तो जो
हफ्ते में एक आध दिन अपना जो क्रिकेट का जो प्यार है उसके लिए वो दे सकेंगे और अच्छी टीम बन सकती है नागदेवी की। तो अगर कोई सुन रहा है, उनके लिए कोई अपनी जेब थोड़ी सी खाली करने की इच्छा रखता है, तो स्पॉन्सर करके उनकी एक अच्छी एक लीग में उनको शामिल करना कोई गलत बात नहीं। 27 पे 3 और भाविन मेहता अब गियर बदलने की मंशा जाए। उन्होंने सोच के आए कि अब प्रहार करना है। अली असगर भी कुछ क्लियर टिप्स के साथ आए, उनको बता रहे हैं। अली असगर देखिए, आते ही उन्होंने बैट स्विंग करना शुरू कर दिया। अब उन्होंने सोचा है अभी नहीं तो कभी नहीं, करो या मरो, अब रुक कर मतलब नहीं है, अभी ये वक्त है जहां पर प्रहार करे। किसी एक बल्लेबाज को तो यहाँ पे चांस लेना पड़ेगा। तो अली असगर ने मन बना लिया। हाँ, ये शॉट कड़क, 1 बाउंस स्क्वायर लेग की दिशा में जाएगा। एक दंदनाता चमचमाता कड़क केडी चौका। केडी कॉर्पोरेशन सुपर हिट चौका। देखिए फिर एक बार उस चौके की तरफ रुककर गेंद, रुके थे ऑफ ब्रेक, जबरदस्त टर्न हुई थी, लेकिन उस टर्न का पूरा उपयोग करके स्विवल कर दिया और दिशा दे दी स्क्वायर लेग की दिशा में। बहुत ही बेहतरीन ये शॉट था। दर्शक सबसे जबरदस्त किफायती गेंदबाज, लेकिन उसके ऊपर ही प्रहार कर रहे हैं। सामने वाली टीम के सबसे अच्छे गेंदबाज पर प्रहार करने की उनकी मंशा। वत्सल के साथ उन्होंने थोड़ा सा सम्मान दिया, लेकिन अब जो सबसे अच्छा गेंदबाज है सामने वाली टीम का, स्पिन के मामले में बात कर रहा हूं, उनके खिलाफ प्रहार किया जा रहा है। दर्शक कमबैक, सीधी वाली जाने वाली गेंद, विकेट कीपिंग का काम काफी अच्छा किया योगेश भाई। आज हर चीज को छू रहे, वो सोने का हो रहा है। कोल्ड टच हो गया, वो अपनी टीम के लिए मिडास टच लेकर आए। सारी चीजों को जो हाथ लगा रहे वो सोना बन रही है। 32 पे 3, खराब गेंद, लेकिन सीधा खिलाड़ी के दिशा में। एक रन मिलेगा 33 फॉर 3 7 ओवर की समाप्ति पर। तीन ओवर में 6 ओवर में 60, 5 ओवर में 60 चाहिए। काफी निर्णायक रहने वाले आगे वाले 4 ओवर्स। नए गेंदबाज है हेमन ने भी अच्छी गेंदबाजी की है सारी प्रतियोगिता में। इसी की वजह से तो ये सारी टीम फाइनल में आ चुकी है। एक मैच तो उन्होंने 112 रन भी डिफीट किए थे सामने वाली टीम के खिलाफ। उसमें जयेंद्र की जो बल्लेबाज गेंद बंधी हुई थी लास्ट में 11 या 12 विकेट के लिए, फिर उनकी गेंदबाजी और बल्लेबाजी वही निर्णायक रही, और उसी की वजह से ये सेमीफाइनल में क्वालिफाई हुए और वही फाइनल में ये किताबी ये मुकाबला है। हेमन स्पिन गेंदबाज, अंदरूनी किनारा लगा बैट का, लेकिन गेंद तेजी से निकल जाएगी। क्षेत्र रक्षक वहां पर थोड़े से चूक कर गए, लेकिन उसका भुगतान उन्हें नहीं चुकाना पड़ा। वही अपने आप को नसीबवान समझे। लेकिन स्कोर देखिए क्या है, 36 फॉर 3। अगले जो 2.4 ओवर से उसमें स्कोर को 60 के पार ले जाने का प्रयास होना चाहिए। तो 100 के नीचे अगर आंकड़ा रहेगा 10 ओवर में, तो आप वो हासिल कर सकते हैं। तो आने वाली 16 गेंदें हैं, उसमें कम से कम उन्हें 24 से 25 रन बनाने का प्रयास करना होगा। अगर ऐसे बल्लेबाजी होगी तो रन आएंगे जरूर। गेंद जाएगी जबरदस्त चौके के लिए। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, मैच खत्म नहीं हुई अभी तक। कड़ा कड़क केडी कॉर्पोरेशन चौका।
आज हार भी सकती है इंडिया। ये काफी अच्छी गेंद, जबरदस्त गेंदबाजी, फ्लाइट दी, टप्पा चेंज कर दिया। जब बल्लेबाज को आगे बढ़ता हुआ देखा तो थोड़ी सी छोटी गेंद कर दी। सो 41 फॉर 3। एक चौका यहां पर आ चुका है, लेकिन भाविन फिर चाहेंगे कि वो भी एक चौका जड़ दे। एक चौका जड़ा है अली असगर ने। अली असगर एक मंशा बना के आए कि हिट करेंगे, वो बैक फुट पे नहीं खेलेंगे, फ्रंट फुट पे हिट करते रहेंगे। शॉर्ट गेंद थी, पूरा उसका उपयोग नहीं कर पाए, निराश होंगे अपने आप से। हेमन 8 रन खर्च कर चुके हैं, 2 वाइड्स, 2 सिंगल्स और एक चौका। आखिरी गेंद पे चौका आने की बहुत आशंका है। भाविन मेहता, ये वाइड गेंद हुई। स्कोर जाएगा 42 पे, 42 फॉर 3। अब भी विकेट गया। वो 50 रन मारा इधर। 43 फॉर 3 आखिर की इस गेंद में 2 वाइड्स डाल चुके हैं। और जब भी वो अतिरिक्त गेंद फेंकी जाती है तो उसमें नुकसान भुगतना पड़ता है। कई बार हमने देखा है कि आखिरी गेंद चौके की ले जाती है। देखते हैं आखिरी गेंद। ये बड़ा हिट लगाने, ऊपरी हिस्से में बैट की लगाए, गेंद जाएगी सीधा। क्या कैच है! 1 2 3 सबसे बेहतरीन कैचेस में से ये कैच थी और सबसे बड़ी विकेट की। भाविन मेहता को चलता किया। 3 जबरदस्त कैचेस लिए हैं वत्सल दोषी ने और अपने आप को वहां पर प्रस्थापित करते जहां पर विकेट मिलने का मौका हो। एक्सेल, सुपर विकेट यहां पर आप देखने मिलेगा। हम रिप्ले में देखेंगे जबरदस्त ये कैच। देखिए गेंद काफी ऊपर गई थी, काफी दूर काउ कॉर्नर मिड विकेट में लॉन्ग ऑन से भागते आए और सुपर हिट कैच लिया है वत्सल दोषी ने। इस टूर्नामेंट के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक, सबसे बेहतरीन फील्डर्स में से एक, वत्सल विपुल दोषी। तो स्ट्राइक पे आए हैं नील शाह। गेंद थोड़ी सी नीचे रही, गेंद जाएगी सीधा खिलाड़ी साहिल पारेख के यहां पे। साहिल पारेख, नील शाह। आज ना ही वत्सल ना ही साहिल आज कारगर साबित हुए हैं विपुल संघवी। और सबसे बड़ा खिलाड़ी विकेट के पीछे जो है योगेश बोरीली वाला। अब पिछले मैचेस में जाके देख लीजिए, उन्होंने छोटी छोटी इनिंग्स खेली, लेकिन तभी भी मैं उनके बारे में कह रहा था कि एक जबरदस्त बल्लेबाज लग रहा है ये। आज उन्होंने साबित कर दिया कि वो कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। नील आए हैं नए बल्लेबाज। अब ये उनके जो तरकश का ये सबसे जबरदस्त तीर है। अगर ये निशाने लग गया तो डीपीएक्स डायनामाइट्स इस साल की चैंपियन टीम हो सकती है। लेकिन अगर ये वार खाली गया तो विप्सा वॉरियर्स
ज़बरदस्त तरीके से सेलिब्रेट कर पाएंगे। इस बहुत ही कॉम्पिटिटिव इस साल का ये जो टूर्नामेंट रहा, इस बार गेंदबाजी थोड़ी सी हावी रही बल्लेबाजी पर, और कई नए खिलाड़ी जिन्होंने अच्छा अपना प्रदर्शन किया। नील शाह उसमें से एक है। पिछले साल भी काफ़ी ये टूर्नामेंट अच्छा, वत्सल इसमें काफ़ी ज़बरदस्त रहे। इस साल फिर वत्सल ने अपना प्रदर्शन दोहराया है। और क्या स्वीप शॉट है ऑन द नीज, 4 ज़बरदस्त रनों के लिए खिलाड़ी मौजूद थे लेकिन उन्हें बिल्कुल चांस नहीं मिला। ये केडी कॉर्पोरेशन कड़क चौका। एक बार फिर देख लिए, घुटनों पे रुककर चौका जड़ दिया। घुटना टेक तमाशा देख कहा जाता है, कमेंटेटर्स कहते हैं, लेकिन यहाँ पे तमाशा नहीं, यहाँ पर चौका देखने मिला। जबरदस्त शॉट। ये विकेट हो सकता है, और एक नहीं। यह फील्डिंग काफी खराब। यहाँ पर 2 गेंदे पे 2 चौके। अली असगर ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे। पहले गेंद पे आकर उन्होंने हिट लगाने का प्रयास किया था। ये तीसरा चौका जड़ा है उन्होंने, माफ कीजिए चौथा चौका जड़ा है। अली असगर, नाम ही देखिए उनका क्या, अली असगर शिकारी। तो इरादे स्पष्ट किए हैं। स्ट्राइक रेट है उनका 210 का और लक्ष्य है उनका 161 का। दर्शक के खिलाफ आज जोरदार यहाँ पर आक्रमण किया जा रहा है कि हर बार दर्शक किफायती गेंदबाजी कर सामने वाली टीम को मुसीबत में डालते, तो ये शायद उनकी स्ट्रैटेजी रही होगी कि हम दर्शक के खिलाफ आक्रामक रवैया अपनाएंगे, और फिलहाल तो वो कारगर साबित होता हुआ। अगर आप दर्शक के खिलाफ अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हो, यहाँ पर किस टीम के किसी भी गेंदबाज के खिलाफ आप खेल सकते हो। ये कर सकता है दर्शक, चेंज ऑफ पेस, चेंज ऑफ लेंथ। दर्शक को बड़ी आसानी से खेला है अली असगर ने। भाविन काफी अच्छी तरह से खेल रहे थे, उन्होंने अपनी विकेट गंवा दी। एक खराब गेंद पर अपनी विकेट देकर वो चले गए थे। फुल टॉस गेंद और बेहतरीन कैच ली थी। 53 फॉर 4, लगभग उसी प्रकार का ही है स्कोर लाइन दिख रहा है। बैकफुट पे जाके पंच कर दिया, गेंद जाएगा सीधा कवर्स की दिशा में। यहां पर 2 रन कम से कम मिलेंगे। और प्रियेश, क्या जबरदस्त उनका परफॉर्मेंस रहा आज के दिन, काफी जबरदस्त क्षेत्र रक्षण किया है। 2 रन के साथ स्कोर जाएगा 55 पे। 55, 4 विकेट के नुकसान पर 9 ओवर की समाप्ति पर। बिल्कुल यही स्कोर था, 54 थे हालांकि 9 ओवर की समाप्ति पर। एक रन के साथ स्कोर जाएगा 56 पर। देखिए लगभग सेम स्कोर था जब विप्सा वॉरियर्स खेल रही थी, लेकिन उसके बाद चीजें बदली और उसका जिम्मेदार थे विकेट के पीछे खड़े होने वाले वो खिलाड़ी। लेकिन यहाँ इनके पास भी वो नील है, इनके पास अली असगर है जो सबसे बढ़िया बल्लेबाज दिख रहे हैं अभी फिलहाल तो इस इनिंग्स के। सॉरी। और ये बल्लेबाजी जरूरी है, हाथ खोलना जरूरी है। फॉरगेट अबाउट द टेक्निक भूल जाओ आप अपने हाथ खोलो, अपनी टीम के लिए जिगरा दिखाओ और रन तो आएंगे फिर। इंटेंट सबसे बड़ा शब्द है, विश्वास सबसे बड़ा शब्द है। इंटेंट मतलब अगर आपको कोई चीज हासिल करने के लिए इच्छा हो, अगर उसके लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको वो जरूर मिलेगी। तो इंटेंट साबित कर दिया है, क्लियर मंशा जिससे कहते हैं हिंदी में, वो अपने स्पष्ट कर दिया, अपने इरादे स्पष्ट कर दिए और सकारात्मक सोच के साथ उतरे अली असगर। तो अगर आप जो नकारात्मक चीजें आपके दिमाग से निकाल देते हो तो जो रिजल्ट्स है, जो परिणाम है, वो आपके फल रूप में ही हो जाए। ओह माय गॉड, अंदरूनी किनारा और जबरदस्त गेंद पर। हेमंत की क्या गेंद थी ये देखिए, ऑफ को छूट गई, लेग को छोड़ गई,
टकरा गई मिडिल स्टंप पे और शायद अंदरूनी किनारा बैट का लिया होगा, नहीं बिल्कुल बीच में से, ये चोरी के रास्ते से गेंद निकल के टकरा गई मिडिल स्टंप से। एक्सेल, सुपर विकेट, बस फर्नीचर तोड़ दिया है हेमंत की जबरदस्त गेंदबाजी ने। देखिए जब तक वो बड़े हिट लगा रहे थे वो आउट नहीं हो रहे थे, और जैसे उन्होंने एक बचावात्मक शॉट खेला उस पर क्लीन बोल्ड हो गए। तो अपना खेल जारी रखना जरूरी था। जो बल्लेबाज काफी जबरदस्त तरीके से खेल रहा था वो आउट होकर पीछे चला गया है। 9वें 10वें नंबर का प्लेयर आके भी चौके छक्के चल रहे हैं यहाँ पे।
74 फॉर 5, 74 पे 5, जबरदस्त बल्लेबाजी है। इस ओवर में 3 डबल्स और 3 वाइट बॉल। जयेंद्र इस प्रतियोगिता में जबरदस्त उन्होंने गेंदबाजी की है और निर्णायक रही है उनकी गेंदबाजी, लेकिन आज उनके ओवर में 10 रन आए पहले 4 गेंदों पर। 75 फॉर 5 राजेश सरवैया, 7 गेंदों में 12 रन। स्ट्राइक पे होंगे अब नील शाह। नील राजेश से पहले आए लेकिन मात्र 2 रन वो बना सके। 2 ही गेंदें उन्हें फेस करने मिली है, 2 गेंदों का सामना किया, 2 रन बनाए और आखिरी गेंद जयेंद्र की। देखते इस पे विकेट निकालते हैं। क्या बेहतरीन ये गेंद थी, फ्लाइटेड गेंद। 63 इयर्स के हैं जयेंद्र, लेकिन उनका अभी भी फिटनेस देखिए, 3-4 ओवर्स लगातार फेंक सकते हैं। बल्लेबाज भी उन्होंने निर्णायक की थी जब उनकी टीम 84-85 पे 10 विकेट गए थे, तो उनकी जो लास्ट विकेट की पार्टनरशिप थी वही निर्णायक हुई थी। No, 76 फॉर 5, 85 रन बनाने हैं 55 गेंदों में। 9 ओवर में रन बनाने हैं 55, 9.1 ओवर्स। अभी भी एक गेंद शेष इस ओवर की। गेंदबाजी मार्ग पर फिर एक बार जयेंद्र, तो बहुत ही बेहतरीन ओवर साबित हुआ है डीपीएक्स डायनामाइट्स के लिए। इसमें रन आए हैं कुल 12 माफ कीजिए, 3 वाइड, 3 डबल्स, 3 सिंगल्स। रन इक्वेशन क्या है? 9 ओवर में 84 रन, तो 9.25 9.5 रन प्रति ओवर। हारने वाली। तो और 78 फॉर 5, काफी अच्छी तरह से खेल लिया है नील ने। 1 रन के लिए काफी अच्छी बल्लेबाजी हो रही है। यहाँ पर रन बनाने अब जो आने वाले 8.4 ओवर्स में 9.46 की रन गति से रन बनाने। 82 रन 52 गेंदों में। इंडिया को 20 रन डिफेंड करने, 6 गेंदों में 20 रन चाहिए वहां पर न्यूजीलैंड को, और उनका एकमात्र खिलाड़ी माइकल ब्रेसवेल 133 पे खेल रहा है। तो अगर वो मैच जीत सकते हैं वहां से, तो यहां से भी ये मैच जीत सकते हैं। लेकिन क्या बेहतरीन गेंदबाजी है। 916 गोल्ड ये खिलाड़ी है। साहिल पारेख गेंदबाजी, फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग हर चीज कर सकते हैं। एट 8.3 ओवर्स, 82 रन्स। स्ट्राइक पर नील शाह, माफ कीजिए, स्ट्राइक पर होंगे राजेश सरवैया।
14 रन बनाए 10 गेंदों में राजेश ने। बेहतरीन गेंदबाजी, साहिल अच्छी गेंदबाजी कर रहे अपनी टीम के लिए। घाटकोपर के इस मैदान में है, लेकिन वहां पर न्यूजीलैंड के खिलाफ विरार बोईसर पालघर के खिलाड़ी गेंदबाज करने के लिए गए। शार्दुल ठाकुर पालघर के खिलाड़ी, पालघर में उनके नाम का स्टेडियम भी बना दिया गया है, शार्दुल ठाकुर स्टेडियम। और वही शार्दुल ठाकुर वहां पर 20 रन डिफेंड करे, जिनके पहले गेंद पे छक्का जड़ दिया है। इधर नहीं, इधर मार दिया, ये आएगा। वहां पर न्यूजीलैंड काफी इम्पॉसिबल सिचुएशन में से जीत रहा है, तो शायद डीपीएक्स डायनामाइट्स भी यहाँ पे वो कर सकेगा। न्यूजीलैंड की टीम लगातार दिखाते हुए कि लास्ट गेंद तक कैसे लड़ना है। यहाँ पर भी उसी तरह की बल्लेबाजी करनी पड़ेगी राजेश सरवैया को। अरे लाइव जा रहा है ना। और यहां पर ये विकेट, ये बड़ी विकेट, राजेश सरवैया आउट हो गए। ऐसी गेंद की जरूरत होगी इंडिया की टीम को भी। 14 रन बचाने इंडिया को वहां पर। यहां पर एक्सेल विकेट वाइपर ड्राइव इंडस्ट्रीज, शार्दुल ठाकुर और माइकल ब्रेसवेल जो 140 के पार पहुंच चुके हैं। आठ ओवर शेष है, लेकिन ये बल्लेबाज इंडिया वहां पर मैच जीत चुकी है। एलबीडब्ल्यू करार दे दिया गया है माइकल ब्रेसवेल को, लेकिन देखेंगे कि वो क्या होगा। एलबीडब्ल्यू करार दे दिए गए हैं माइकल ब्रेसवेल, रेफरल के लिए गया है। क्या जुझारू पारी थी वहां पर माइकल ब्रेसवेल की, याद रखा है। इसीलिए न्यूजीलैंड को काफी फेवरेट माना जाता है। उनके पास निर्धारित साधन होते हैं, लेकिन उसका भी वो पूरा इस्तेमाल करते हैं। कम खर्चे में ज्यादा चर्चा है न्यूजीलैंड की टीम। और शार्दुल ठाकुर पालघर के खिलाड़ी ने मैच जीत लिए। और नील शाह कर्रारा जवाब दे रहे हैं कवच की दिशा में। बेहतरीन शॉट 1 रन के लिए, लेकिन शॉट काफी जबरदस्त है। गेंदबाजी करने स्मिथ दोषी, जिन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी पूरी प्रतियोगिता में इस गेंदबाज ने अच्छी की है। एक मैच में शुरुआत उनकी पहली ओवर की अच्छी हुई नहीं हुई थी, लेकिन क्या गेंदबाजी की थी सेमीफाइनल्स और क्वार्टर फाइनल्स में इस गेंदबाज ने, स्मिथ दोषी। फिर एक बार वैसा प्रदर्शन की अपेक्षा होगी उनसे। विप्सा वॉरियर्स विपुल विरल प्रदीप और संजय दोषी की टीम। तो क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा माइकल ब्रेसवेल का वहां पर इंडिया के खिलाफ, लेकिन नील का प्रदर्शन कैसे होगा वो देखना जाएगा। और सबसे अच्छे खिलाड़ी को वहां पे रखा है उन्होंने, तैनात किया है। जो बाउंड्री राइडर्स होते हैं ना, बिल्कुल कमांडोज की तरह होते हैं, जो प्रोटेक्ट करते हैं। ये खत्म हो गया, मतलब खत्म हो गया, भाव खत्म। ये भाव था, ये मतलब बंद करो। तो 83 फॉर 6, 13वां ओवर। क्या कड़क प्रहार है, गेंद सीधा निकल जाएगी, रफू चक्कर हो जाएगी। कर्रारे 4 चौके लिए, कड़क कर्रारा जबरदस्त चौका। केडी कॉर्पोरेशन कर्रारा चौका।
ये जो भी चौके छक्कों के स्पॉन्सरशिप होते हैं हर साल, पिछले साल स्पिन्स थे, इस साल केडी है, उनके जो सेल्स में बड़ा हो जाती है, लोग उन्हें जानना शुरू कर देते हैं। तो अगली बार चौके छक्के की जो जो स्पॉन्सरशिप देंगे उसके लिए लड़ाई होगी। लेकिन केडी कॉरपोरेशन, इनके बारे में बताते चलो कि इन्होंने इस चौके छक्कों की मांग की भी नहीं थी। जब इनसे पूछा भी नहीं गया तो उन्होंने सामने से अपना, जो उनसे पूछा कि आपका योगदान क्या, उन्होंने स्पॉन्सरशिप दे दी। और हमारे कमेटी मेंबर्स ने उनको चौके छक्कों के लिए उनका चुनाव किया और उन्होंने देखा भी नहीं यहाँ तक। लेकिन आदमी जब कर्म करता है तो उसके फल मिलता है। बिना इच्छा के उन्होंने किया था, उन्हें सबसे अच्छी स्पॉन्सरशिप मिल गई चौके छक्के की। और क्या ये और एक चौका जाएगा, यस, रफू चक्कर हो जाएगा पॉइंट की दिशा में। सबसे बेहतरीन खिलाड़ी थे वहां पर साहिल पारेख, लेकिन उनको गेंद चकमा देके 4 कर्रारे चौके की ले गई है। 91 फॉर 6, 70 रन बनाने 44 गेंदों में। नील शायद इस प्रतियोगिता के सुपर स्ट्राइकर हो जाएंगे। जबरदस्त चौका, 4 रनों के लिए पॉइंट के लेफ्ट तरफ से गेंद निकल गई। 2 गेंदे और 2 चौके। स्मिथ ने पिछले मैच में जबरदस्त गेंदबाजी की थी, इस मैच में उनके ऊपर प्रहार हो रहा है। नीरव एक तरफ है, दूसरी तरफ है नील। एनएन की ये जोड़ी, नीरव नील शाह, नीरव उचट। ये सबसे बेहतरीन लेट कट था। गेंद जाएगी सीधा थर्ड मैन के खिलाड़ी की। यहाँ पर 1 रन के लिए स्कोर जहां पहुंचेगा 92 पर 92 फॉर 6। अभी भी मैच में उनका जो चैलेंज है वो जीवित है। 11 रन इस ओवर में, पिछले ओवर में रन आए थे 12, इस ओवर में रन आए 11। 23 रन 2 ओवर्स में आ चुके हैं, इनफैक्ट 11 गेंदों में आ चुके हैं। तो चीजें बदल रही है और बहुत तेजी से बदल रही। याद रखिए 82 कुछ स्कोर था 15 ओवर पर और विप्सा वॉरियर्स का, और उसको लगभग दुगना कर दिया आखिर के 5 ओवर्स में। तो इनकी तो पोजीशन उनसे काफी ज्यादा अच्छी है, तो चीजें बदल सकती है। 7 ओवर में आप ये जो 68 रन है वो बना सकते हैं, 69 रन। बेहतरीन गेंद, स्मिथ जोरदार वापसी करते हुए 92 फॉर 6 जीत के लिए रन बनाने हैं। 69 गेंदे शेष है, 42 7 ओवर और 69 रन, लगभग 10 रन प्रति ओवर। अभी इस मैच में नील और नीरव कैसे खेलते हैं उस पर इस मैच का रिजल्ट रहेगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नील अगर रुक जाते हैं 5 ओवर्स तक तो ये मैच भी जिता देंगे, लेकिन उनके सामने एक जबरदस्त चैलेंज रहेगा साहिल पारेख का। गलतियां ऐसे करेंगे तो आप नहीं जीत पाएंगे। दर्शक पूरे प्रतियोगिता में जबरदस्त गेंदबाजी, क्षेत्र रक्षण किया था। आज उनसे गलती हो रही है। आज थोड़ी सी जो नमी है, जो ड्यू है वो ज़्यादा है, उसके कारण उनको जो बॉल है ठीक से ग्रिप करने नहीं आएगी स्पिनर्स को, और उसी का फायदा हो रहा है। तो इसलिए जयेंद्र और दर्शक की ओवर्स कम करके अब साहिल पर चोटिल होने के बावजूद गेंदबाजी करने का जिम्मा आ गया है। और उन्होंने बेहतरीन पहला ओवर फेंका था जिसमें उन्होंने विकेट चटकाया था और मात्र 4 रन खर्च किए थे। इस मिसफील्ड के साथ वहां पर 2 रन गए हैं और साहिल पारेख निर्णायक बल्लेबाज हो सकते हैं। अगर वो नील का विकेट चटका दे तो मैच को क्लोज कर सकते हैं। नील वहां पे 5 ओवर रुक जाए तो नील डीपीएक्स डायनामाइट्स को ये चैंपियनशिप खिताब दिला सकते हैं। काफी आसानी से आराम से खेल रहे हैं नील।
और क्या बेहतरीन ये बॉल, इसलिए साहिल पारेख बिल्कुल 916 गोल्ड है। ऑफ को छोड़ दिया, मिडिल को छोड़ दिया और उखाड़ दी मिडिल स्टंप। नीरव की जबरदस्त विकेट, क्लीन बोल्ड, बेल्स गायब है और बीच की विकेट भी उखाड़ दी है। क्या बेहतरीन ये एक्सेल विकेट। को अब दूसरा मौका मत दीजिएगा, क्योंकि दूसरा मौका उस इंसान के हाथ में उस चाकू को देने की तरह है जिसको देखकर आप कहते हैं कि सुनिए, पहली बार में जो कमी रही थी इस बार आप पूरी कर लीजिए। और अगर फिर भी आपको लगता है कि वो इंसान आपका अपना है, तो याद रखिए कि अगर आपका अपना हो So 95 for 7 is what the score is last 6 overs, and we are going to see some fantastic entertainment. Oh, that's what I was talking about. This is a fabulously hit, cracking boundary. KD Corporation superbly hit boundary into the extra cover region against Smith Doshi. Oh, that's a very crucial blow. Score is 99 for 7. The target is achievable now. 62 runs in 35 balls is not impossible. Especially you have a batsman who can give you such runs. So DPX Dynamites, they are still in it to win it. And his Dharam has come to give him company. Dharam Sheet.
Under edge for a single. Dharam would come on strike. They need exactly 61 in the remaining 34. Most of these guys are young Gujaratis and some old businessmen. But Gujaratis or these guys, this community is known for making things out of nothing. Almost from nothing they have created their own empires, and they are known to get things out of nowhere and from impossible situations. This is one difficult situations, and they have that fighting spirit in them to maximize whatever they have. Oh, almost a run out he was. He missed out. Again they miss out. That was almost a suicidal attempt. Go down the ground. He just waited and allowed the wicket keeper Yogesh Bhai to hit the stumps, which he missed completely because of the gloves in the hand. And he still survives there. First ball he went down. See, remember 12 players can bat. So they have a lot of long batting lineup who can play. So from one end they can swing, and Neil can give company to the batters who come in, and Neil can score on his own. They need at least 20 runs from others. Neil can score the rest 40. Oh, that's a cracking shot. That's racing towards the boundary. That would be difficult to stop. And Vipul misses out, the experienced Vipul, and they get a couple of runs. He's not able to run. Look at the pads. He's almost down with it. He is not comfortable with the pad which we have. Perhaps he has worn the pad of some other make. That was very, very funny. We'll just have a look at how he ran. Just see. Just have a look at it. There you go. So let's come back live. I think the problem of his pads are sorted. Dharam almost fell down while running. His pads were off. It was looking very funny though. We'll have a small look at some funny captions. Dharam's pad would be there right on top. Right now the team which is on top is Wipsa Warriors. That's a cracking cut shot. That would be 4 runs. No one's going to stop that one. Fantastic hit. Dharam gets his first KD Corporation cracking boundary. The match is still on. Exactly 60 runs needed from here on. In fact 59 in the next 5. Look at that beautiful shot. Just went off the back foot, cut it hard, piercing the two of them to perfection.
and both of them had to just go and fetch the ball back. Nothing else they could do. Smith Doshi has been very expensive. 2 overs and 22 runs. Now they have to rethink. And yes, Darshak has been called back to bowl those overs, because remember, Vipul has 1 over and Vatsal has only 1 over. So those 2 overs would be there, and 3 other overs have to be taken care of. Now Darshak Salot comes in to bowl his 3rd over probably. So you would have 2 overs. Sorry. And Neil against Darshak. That would be really interesting. .55 runs in the remaining 30 balls. 5.5, 10, I beg your pardon, 11 runs per over. Darshak Salot has been taken for a few runs. Bhavin Mehta and Ali Asgar were very aggressive against him. Run rate of 11 runs per over, not impossible with Neil there, and with Dharam just swinging his bat now. Last 5 overs of this very long Jinharsh Timken Ador Cup started on 3rd, ending on this day of 18 January. So almost a 15-day tournament with 5 wonderful days of... Oh, he gets him. And look at the wicketkeeper. He has done the job for him. And that's what he does. Quick, very quick. Just like Rishabh Pant, who is in the hospital right now. But this man is in the ground. Yogesh bhai, look at the replay. Very quick. Look at the way he played. Very quick. Super quick. Mahendra Singh Dhoni, Rishabh Pant and Ishan Kishan put together. रिश्ता वही कायम रहे। Darshak, I said, that's the reason I said that's another cracking XL wicket powered by Viper Drive Industries, Mr. Pratik Shah and Rahul Shah. That was a super duper wicket taken by Darshak. 2 very important wickets. See, life changes like this. Darshak, 2 overs 20 runs. Next over he comes in, he picks up 2 crucial wickets. And he is a very good batsman. Don't discount him. Even he is being dismissed. Jayesh, he is a super experienced batsman. He is being dislodged on the Golden Duck. So 2 in 2 he gets. None for 20 in 2 overs, 2.3 overs, gets dot, wicket. Sealing the deal for his team. 3 more wickets to go.
4.3 overs in which to get 55 runs. It's Hitesh who is the new man in, and they need to keep swinging the bat. You never know. He is on a head rake. Almost got a head rake. Darshak salute. He would be in that highest wicket taking columns. Darshak along with Vipul, or this man has been brilliant though. Vatsal Doshi. Superb. He has won the match by his fielding 3 superb catches and all 3 of important players. And also the man behind the stumps. He is the player of the match for me. Yogesh Bhai from Borivali. Dharam Seth. He will swing his bat. Another chance for him to get a stump out. Yogesh Bhai has to be alert. There would be another stumping on cards. He is going to come out of the crease. Take my word on this ball. There is a chance of a run out there. In fact, a stump out there. Yogesh Bhai getting ready to get a stump out. 4.2 overs remaining. Instead he goes, shuffles across, hits it straight to the fielder. Jayendra is there. He takes a single, goes to the other end. 108 for 9. This match is sealed now. Wipsa Warriors can be getting ready for celebration. They must be putting or encrypting their names as champions of Jinharsh Timken Ador Cup 2023. It's definitely going to be Wipsa Warriors now, unless something very, very dramatic happens in the next 4.1 overs. Somebody plays like what Yogesh did. It has to be Hitesh or Dharam who does it for them. And 108 for 9. 3 more wickets to go. Remember, 13 can play, so 12 wickets can still play. 12 to bat. Now that's good work by the wicketkeeper, trying to fool the umpire, getting the ball from outside the off stump in. So 4 overs in which to get the remaining 53 runs. So the score is 108 for 9. 53 runs in 24 balls. Dharam Seth, he will swing his bat against Vatsal. Oh, he goes for a big one. That would be a chance. Falls in no man's land. Vatsal, unfortunate not to get a wicket. He has bowled well. He would try and finish the innings in this over. He might get 2-3 in this over if he bowls well. Hitesh, he's got 1. He needs to swing his bat. Keep believing that they can win this one. Try and swing your bats. No, he trying to bowl the Yorker. 22 balls remaining. 52 needed in 22. And that's very high. We'll wait for the umpire signal. That's Jayendra, is it? No. That's a no ball. And that's a free hit. 2 runs would be added. Free hit, only way you can get out is by run out or handling the ball or obstructing the field. So let's see. He wants to play the Surya shot. Almost 14.5 runs per over needed now. 50 runs in the next 21 balls. It's almost going to be impossible. That's what the man behind the stump said. Hit many boundaries in the last 2-3 overs.
He's cleaned him up. That's a super wicket. XL super wicket. Let's have a close look at the replay. Yes, smashes it. Have a look at it again. Hitesh is at the non-striking end. "20 balls, 50 runs to win." First wicket for Vatsal Doshi. He might pick one more in the next two. Oh, that's beautifully hit. Cracking cover drive. Will race all the way for a couple of runs maybe. If they run well, they'll get 3. Yes, they do. They get a... Oh, missed out. Vatsal. First mistake for him in the day. Last ball of Vatsal's spell. Last ball of Vatsal for Jinharsh Timken Ador Cup 2023. Will he get a wicket? Fantastic figures of his. 1 for 14 in 3.5. Economy just 3.5. That will race away for a boundary. That will spoil his figures. 4 overs, 1 for 18. Economy of 4.5. Still a very good one. And the match is still on if they keep hitting them. No, 118 for 6. They need exactly 43 in the next 3. So 108 for 10. 2 wickets remaining, just a formality now. Wipsa Warriors are well on their way to secure the championship. It was TVX Tufani last year. HE Warriors were champions, then 2 years they were runner-ups. It's a fabulous shot. That's very long. And that's a monstrous sixer. What a way to hit. Nilesh Vasa, that was a terrific, super KD Kadak Chakka. What a shot that was. Fantastic shot. Kadak KD Corporation Chakka. Fantastic hit that was. Cracking hit to get 6 runs. So they need 37 in the next 17. Remember, the West New Zealand team went all the way till the last over. And from a position of no hope, they were almost in the sight of winning. They just needed 13 runs in the last 4 balls. So anything can happen. Keep hitting them against a very good bowler, Sahil, who has been one of the players of the tournament. He might just pick 2 wickets in 2 balls and finish this. That's a wide. That's going to help. 36 in the next 17. There is hope till the last wicket. 12 to bat. "17 balls, 36 runs to win." Cracking sixer. Now that's a wide, but that must have gone over the stumps. That must have gone over the stumps, but umpire understands. It's gone down the leg side. They need 35 in the next 17. Sahil has bowled it very quickly. He's not happy with someone coming down at number 11 and hitting him for a huge 6. One more 6 and things would be interesting. And there would be some twist remaining in this match.
and we might see some fight back. One more 6 needed. Things would be really interesting after that. 12.35, it's a manageable score. 2 wides, 8 runs in the first ball. Oh, he goes for it again. The ball is racing towards that mid-wicket cow corner region. They'll give a couple away. With that couple, equation 33 runs in 16 balls, almost possible. 2 runs every ball needed. Things can change. If Yogesh Borivali can, even Nilesh Vasa can. The ball just slipping through side sand. That must be the thing. He must. Lots of dew on the ground. But Nilesh is hitting them smoothly. Some spice remaining still in the match. You saw a scintillating match in the tennis cup where 23 runs were scored in the last over and they won it. It was close to a wide, this one. But 33 in 15. Can you imagine such a good bowler given away 10 runs so far in 3 balls? Balls. बंद था? 15 balls, 33 runs to win, 1 6, and that would be some interesting thing. And Nilesh has hit already 1 6 in this over. You might see another one. Or will the stumps be disturbed again? Yes, already disturbed furniture once. Oh, he goes for it again. There's fall in no man's land. Oh, it's a fabulous catch. What a catch! Is that Hare? Yeah, fabulous catch. Heyman taking a fantastic catch. Running catch and dismissing the last hope. Cracking wicket powered by Viper Drive. Excel wicket powered by Viper Drive Industries. Good catch that was. Great catch. That's the last wicket coming up now. 13 players can bat. That means 12 wickets have to be going down. This is anyways a hard work as a commentator and people to finish things, because wickets don't get allowed. It keeps on going. It's the last wicket now. If this is the last wicket, Priyank Shah will Sahil pick his 4th wicket. Not as a batter but as a bowler, Sahil has performed. But Vipul Sangvi's first 3 wickets were crucial. Vatsal's first 3 overs in the power play were crucial. The ball has hit him rather than he hitting the ball. Last ball, Hitesh is on strike, leg buys. 13 balls, 32 runs. Match doesn't seem to get over. It's going on and on. Still, Hitesh hits 1 boundary, there would be some hope. Never know, keep hitting them. The 2 overs in which to get the remaining runs. 32 of them, 16 runs per over precisely. In fact, 31 needed, so 15.5. So will Darshak get his 3rd wicket? Last over he gave away 2 runs and took 2 wickets. Let's see whether he gets
the third wicket and finish the innings and celebrate with joy. He goes for the big one, does Hitesh. Last wicket. He's going round the wicket, Darshak. So it's the grand finale and Wipsa Warriors. You can see some firecrackers in the background. These are not by Nagdevi. These are by some other people. But still, we can take them for our celebration. 80 runs per over needed. So 3 runs needed every ball. That's a chance. That would be game, set and match. Will that be a sixer? Oh, that's a fabulous hit. He just wanted to hit it softly. The ball just went all the way. KD Corporation super sixer. That was a misfield, I think, by the fielder over there. Look at the crowd getting ready to celebrate. 24 runs needed in 9 balls. Priyank has hit 1 sixer. That was just well timed. And the ball just flew away. That's what timing can do. It's not power all the time. It's always timing and hitting from the middle of the bat. That went from the middle of the bat. So what they need is 23 runs of the remaining 8 balls. They need 3 more hits like this, big hits, and they will win this one. Eight balls, 23 runs to win. Priyank and Hitesh. Keep swinging, you never know. Hitesh can hit a boundary or two in the next balls and things would be really interesting. Remember, in the tennis match, 23 runs were scored in the last over. And 1 ball, 4 runs were needed. He hit a sixer to win that one. So you can never know what can happen. In fact, 2 balls and 7 were needed and he hit a sixer. Something like that. Yeah, that is done and dusted. Is it? Yes. That's the championship for Wipsa Warriors. The champions of Jinharsh Timken Ador Cup 2023 is Wipsa Warriors. Viral, Pradeep and Sanjay Doshi's team. Man of the match for this match, of course, Vipul Sangvi of Wipsa Warriors. He has taken those 3 wickets in front, and that was the reason of them winning that one. So, congratulations. Thank you everyone who was associated with this tournament. Thank you all the sponsors. Thank you all the people who had come in to watch. Thank you Rajiv Shah, Raju Taparia, Vipul Doshi, Ajit Shah, Kumar Bagadia, Sumit Shah, Bhavin Vora, Gaurav Akhalia, Rajesh Sarvaya, Vipul Sangvi for the fantastic work you have done. Also thank you DYZ India Solutions. Thank you Bunavkar Enterprise, Bhavi Impex, NK Trading, Sri Sham Impex, QLH, Vikas Enterprise, Wipsa Warriors, KK Smashers, HE Warriors, TVX Tufani, HMS Adidas, Chandramouli Enterprise, Viper Drive Industries, KD Corporation, DPX Dynamites, everyone who ever has been associated with this tournament. Thank you so much for your continued support. Jinharsh Industrial Solutions Private Limited, Jay Prakash Vasa, Garish Vasa were the title sponsors and they were proud of a fantastic tournament. Thank you so much. Food sponsors DYZB Bearings, India Solutions, Mr. Rakesh Waghela and Nishant Shah. Apparel sponsors Navkar Enterprise, Mr. Rak Prakash Bakhelia, Bilakia and Sagar Bilakia, Bhavi Impex, Chitra Shirani, NK Trading and Sri Sham Impex, Ajay Agarwal for your YouTube live sponsorship, media partners Axis Technologies, QLH Automations, Mr. Sanjay Shah, Kunjal Shah, Naresh Mehta, ground sponsors Vikas Enterprises, Mr. Vikas Kutta, and Bhokal Wall and Kit sponsors CMA, Chandramouli Enterprise, Mr. Rohit Zatakia, Wicket and prize sponsors Excel Viper Drive Industries, Pratik Shah and Rahul Shah, KD Corporation for the 4 and 6 sponsor for
Mr. Kiran Vora. Thank you so much for all of you being associated with this game. Thank you all the family and the supporters who have come in to support. Thank you so much. This is Santosh Pitbawkar signing off. I hope you enjoyed the show as such. I enjoyed bringing it to you. Thank you so much. Until we meet the next year. बाहर कोई कौशिक को बोलो ना वो टेबल उठा रहे हैं ये कौशिक अजय भाई लोग सब